किसी क्रिएटर को देखते हो, किसी को देखते हो जो तुमसे बहुत अच्छा कर रहा है, and you think ये इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि ये प्रिविलेज है. So that should not be your excuse. It should be कि यार मेरे पास जो है, I have this opportunity to prove myself without privileges, without anything, because that's where creativity flows in. जब तुम bounded होते हो, लेकिन उस बाउंडेशन को पार कर देते हो with anything you have, even just one phone. और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है तो हमारे पास कोचिंग के पैसे नहीं होते, बट पीपल क्लियर एग्जाम्स विदाउट कोचिंग टू, and they become real inspiration. So that's the mindset you should have. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिशिर वादवन पॉडकास्ट, जहाँ पर मैं जो एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, मार्केटर्स हैं, उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ, हाउ दे कैन बिल्ड देयर ब्रांड एंड हाउ दे कैन चूज देयर नीश एंड एवरीथिंग दे वांट टू आस्क मी. सो टुडे वी हैव वंशिका. सो वंशिका अपना इंट्रोडक्शन देंगी एंड वी विल स्टार्ट विद हर क्वेश्चंस एंड व्हाट आई ऑब्जर्व from her profile and other things. So let's get started. Vanshika, please give your Okay. introduction. Hello everyone, my name is Vanchika and currently I am just 18, 12th pass out right now, and I'm doing just freelancing, like appointment setting I'm doing, and like I'm exploring more often, like networking with people, and yeah, just doing such type of things. Okay. Thank you, Vanshika, for giving an introduction. First of all, before moving ahead, I want to thank you for coming here, for being on my podcast. Because as when I passed my 12th standard, I was also exploring, and I didn't want to go college. Even I went to the college for 3 months, but I left after 3 months because I don't want to study there and following the same pattern. At that time I was starting and I did a lot of mistakes, and now it's been Yeah, 2 or 3 everyone. years I started and I learned a lot of things. And when I had this idea that there are people who just passed their 12th standard or in their college days and they want a help, so right now and there are lots of creators out there who are providing this thing, and charging a lot. So I think I can help people and I can learn more. So I can see myself in you when I was 18. Right now I'm 21, so it's been 2 or 3 years. So Okay. yeah, so I'm very happy to help you. So let's start. I will start with your questions, and I have also questions for you, which will help you understand yourself better. So there are lots of amazing things in this episode. So let's get started. So start with your questions. Just ask any questions. And before uh, asking question, I want to tell you one thing, जो कि मैं सबको बताता हूँ, दैट व्हेनेवर यू आस्किंग क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जब मैं ऐसे एक पॉडकास्ट पर था जहाँ पर मेरी कोई हेल्प कर रहा था, जहाँ से मुझे भी ये आइडिया है दैट आई शुड हेल्प अदर पीपल, सो वहाँ पर Okay. मैंने एक चीज़ सीखी दैट जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको बहुत सेल्फिशली पूछो. सेल्फिशली यानी कि होता क्या है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, हमारा क्वेश्चन कुछ और होता है, लेकिन हम लेयर बना के पूछ रहे होते हैं ताकि हमारी कमियां सामने ना आए, या हम इनसिक्योर फील ना करें. सो डोंट फील दैट वे. जस्ट इसलिए सेल्फिशली है कि मुझको चाहिए. सेल्फिश क्या होता है कि मुझको चाहिए, मैं तो करूंगा. तो चाहे क्वेश्चन जितना भी तुमको डम लग रहा हो या जैसा भी लग रहा हो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन, बी सेल्फिश बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव. सो वो वाली चीज ना हो, ये मैं चाहता हूँ. ओके, स्टार्ट विद योर क्वेश्चन. सो व्हाट यू वांट टू आस्क. Okay, so जैसे मैंने बताया कि like it is okay with Hindi हाँ conversation. बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश. ओके, सो जैसे मैंने बताया कि लाइक मैंने अभी स्टार्ट किया है सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी, वैसे तो चीज़ें सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन या ऐसा है कि 2024 आ गया है, तो फॉर दैट मुझे बहुत सारी प्लानिंग वगैरह भी करनी है मेरे लिए, और लाइक मैं कैसे अपनी फ्रीलांसिंग वाली जर्नी को और अच्छा लेके जा सकती हूँ लाइक 2024 के लिए, क्योंकि अभी जस्ट मैं आफ्टर जस्ट 12th के जस्ट बाद मैंने अपनी फ्रीलांसिंग वाली जर्नी स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा हो गया है उधर से भी, और लाइक मैं चाह रही हूँ कि लाइक इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, लाइक कॉलेज वगैरह के लिए मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि लाइक आई शुड गो फॉर दिस. सो वही है कि कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ भी स्टार्ट करनी है, लाइक थोड़ा थोड़ा उधर भी. ओके, सो अगेन आई अंडरस्टूड. मतलब जो भी तुमने बताया वो बताया कि तुम कहाँ स्टैंड कर रही हो. यू हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड एंड यू हैव डन फ्रीलांसिंग. यू हैव सीन कि वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है अगर और मेहनत करी जा सके. So right now you are thinking about content creation. Okay, so the first question, okay, uh, okay, I will ask you question, then you will Okay, no answer. worries. When was the first time you thought about starting your content creation journey? कब दिमाग में आया कि यार कंटेंट क्रिएट करना चाहिए?
लाइक ऐसा तो कभी ऐसा एकदम से थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ वो चीज़ मेरी प्लानिंग चल ही रही है उसके लिए। लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स को भी मैं देखती हूँ, लाइक बस वो डालते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, और एक वही है कि मैं वहीं पर पीछे रह जा रही हूँ, मतलब मैं डाल नहीं रही हूँ, मैं उसके लिए वर्क नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक वो भी है, मतलब मैंने स्टार्ट भी किया है, लाइक पिछले मैंने 7-8 दिन पहले मैंने कुछ सेट ऑफ वीडियोस बनाए अपने लिए, कि लाइक वो कैसे प्रोसेस होता है, लाइक स्क्रिप्ट कैसे होती है, वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए, कैमरा कैसे फेस करना चाहिए, ये वाली सारी चीजें मैंने देखी, लाइक थोड़ा सा अपने लिए ट्राई किया। बट क्या हुआ कि मैं एक पॉइंट पर आकर रुक गई, मुझे समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो जो सेट ऑफ वीडियोस थी वो किस बारे में थी? वो मेरे खुद के ऊपर है, लाइक जो मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा, जो मुझे पसंद था, वो सारी चीज को मैं लिखती थी और उसको थोड़ा सा स्क्रिप्ट फॉर्म में करती थी, और फिर उसी को मैं रिकॉर्ड करती थी। तो तुमने वो वीडियोस अपलोड करी कहीं? नहीं, वो अपलोड नहीं करी, क्यों? क्योंकि वो बस ऐसे ही बनाई मैंने उसको, ऐसा अच्छा, ऐसा था कि मैं पूरे सेट ऑफ वीडियोस बना लूंगी, लाइक उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे को डायरेक्शन मिलेगा वहां से कि लाइक ओके, कैसे मुझे करना ओके, चाहिए। सो ओके, एंड व्हाई कंटेंट? लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स जो कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंटेंट, सो व्हाई कंटेंट? वाई कंटेंट, ऐसा कुछ वो नहीं है कि क्यों करना है, बस ऐसे की चीजें कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो इसको भी ट्राई करती ओके, हूँ। लेट्स गो अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लोरेशन फेज। होता क्या एक्सप्लोरेशन फेज में? ओके। The mistake I did when I was in my exploring phase, I started with one thing. For example, मुझे कोडिंग से स्टार्ट किया कि कोडिंग सीखते हैं। सो एक दो महीना कोडिंग कोडिंग सीखा और इंटरेस्ट बना, एंड फिर लगा कि यार नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, एंड एक दो महीने में कहीं और स्विच कर लिया। ओके, एंड देन फिर और फील्ड्स में, जैसे फाइनेंस में कुछ टाइम दिया। फाइनेंस में मैंने कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर स्विच कर लिया। एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट रूल जो मुझे लगता है जो होना चाहिए, इफ़ यू थिंक कि तुम एक्सप्लोरेशन फेज में हो, कि अगर आप एक चीज़ को पकड़ते हो तो कम से कम उसके 5 to 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होना चाहिए जहाँ जिसमें आप उसी चीज़ को कर रहे हो रेगुलरली, एंड देर इज नो गारंटी दैट यू विल फेल और विन। द थिंग इज यू हैव टू कमिट 5 or 6 मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी चीज़ है या नहीं है। होता क्या है कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, मुझे भी लगे थे, लेकिन ये 5-6 महीने और आने वाले 10-15 साल या फिर 6-7 साल आप एक चीज़ कर रहे होंगे, तो अगर आप एक साल भी एक्सप्लोर करने में देते हैं, हम कॉलेज इसलिए तो नहीं जा रहे कि हमको वहाँ पे बंधना नहीं है एक ही सब्जेक्ट्स में, वी वांट टू एक्सप्लोर। सो एक्सप्लोरेशन का रूल यही है कि 5 नहीं तो कम से कम 4 से 6 महीने एक चीज़ को देना चाहिए टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ यू आर इनटू दैट इन दैट एक्सप्लोरेशन फेज, एंड यू आर थिंकिंग कि अब होता क्या एक्सप्लोरेशन फेज में कि हम फ्री होते हैं, वी आर फ्री, वी कैन डू एनीथिंग, ना कॉलेज का प्रेशर ना घर का प्रेशर, घर वाले भी देंगे नहीं क्योंकि छोटे हैं। तो हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को देख करके। रूल एग्जैक्टली। रूल के रूल क्या कहता है कि रूल सिंपली कहता है कि एवरी अपॉर्चुनिटी इज लाइफ चेंजिंग, बट इट विल ओनली चेंज योर लाइफ व्हेन यू फोकस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम उस ओके। अपॉर्चुनिटी पे बहुत लॉन्ग पीरियड तक काम करते रहेंगे। अब लॉन्ग पीरियड में होता क्या है कि उसके कुछ ही स्टार्ट करने के बाद शायद 1 महीने में 2 महीने में हमको लगेगा कि दिस इज नॉट माई थिंग। क्यों लग रहा है ऐसा? बिकॉज वी हैव टाइम, नो प्रेशर, तो हम फ्री हैं, हम तो 2 महीने बाद छोड़ देंगे एंड उसका टैग दे देंगे वी आर इनटू द एक्सप्लोरेशन फेज। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो एग्जैक्टली। रही होती है। अगर उनसे पूछा जाए ना कि व्हाट्स योर थिंग यार, कि व्हाई डिड यू लिव दिस थिंग, एक्सप्लोरेशन में थे लेकिन छोड़ा क्यों? यार हो नहीं रहा था, वो तो है ही ना, कोई भी चीज है उसको करोगे तो वो तो होगा ही नहीं। दैट इज द हाँ। थिंग, उसको करने के बाद यू बिकम एक्सपर्ट और यू बिकम गुड एट दैट थिंग। सो सबसे पहला यही मेंटल ब्लॉक होता है एक्सप्लोरेशन में कि हमको 1-2 महीने में जब चैलेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि जब चैलेंजेस आ रहे हैं तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है, फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड लर्निंग वीडियो एडिटिंग, ओके, एंड अब वीडियो एडिटिंग आप सीख रहे हैं, अब 1-2 महीने में लग रहा है यार वीडियो एडिटिंग हो नहीं रहा, ये मेरे से ये सॉफ्टवेयर मेरे को चलाने नहीं आ रही। फिर उसके बाद क्या आता है कि आपने इंस्टाग्राम खोला एंड कोई क्रिएटर है, वो अब बता रहा है कि कैसे उसने कॉपी राइटिंग से सिर्फ 1 महीने में पैसा कमाने लग गया, एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग इनसाइड योरसेल्फ, अबाउट ओके यार कॉपीराइट। हो सकता है कि कॉपी राइटिंग इज माई थिंग, बिकॉज 1 महीने में हो गया और यहाँ मैं 2 महीने से लगा हुआ हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। सो हम स्विच कर जाते हैं और वो मिस्टेक चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और फिर एट द एंड क्या लगता है कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में। फिर मेंटली तुम थकने लगते हो,
तो ये जो एक्सप्लोरेशन फेज में तुम हो, मैं चाहता हूँ, मैं मुझे नहीं पता तुम कहाँ स्टैंड कर रही हो और तुम क्या सोच रही हो, बट आने वाले टाइम में जब तुम एक चीज को पकड़ के करोगी तो ये दिमाग में आएगा ही आएगा, क्योंकि वी आर बिगनर्स, राइट? और इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन जो ये मेंटल ब्लॉकेज है, जो ये सोचना है कि वो वाली फील्ड अच्छी है, ये वाली फील्ड अच्छी नहीं है, या मैं गलत फंस गया, मेरी वाली चीज नहीं है, सो उस चीज को खत्म करना है। इट विल हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि बी ऑनेस्ट एंड दूसरों के लिए अच्छा फील, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक, जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों की परवाह मत करो, डोंट केयर वट अदर पीपल्स थिंक, और हम भी सामने यही कह रहे होते दैट आई डोंट केयर वट ही थिंक्स। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ खड़ा है, मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्या कह रहा था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त आया, वो कह रहा भाई तेरे बारे में ना वो ये चीज बोल रहा था, एंड यू से मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, लेकिन सेकेंड ही मोमेंट तुम क्या पूछ रहे हो, तो अच्छा बता तो बोला क्या उसने। सो यू केयर अबाउट दैट पर्सन, राइट? तुम्हें परवाह है उस चीज की। सो लोग ये बहुत गलत बोलते हैं। द थिंग इज कि तुम्हें समझना पड़ेगा दैट आई केयर दैट फॉर दैट पर्सन, या चाहे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि गलत चीज है। तो पहले खुद समझा कि हाँ मैं ही मिस्टेक हूँ, मतलब मैं ही गलत सोच रहा हूँ, एंड देन यू इम्प्रूव। सो सिमिलरली जब हम ये स्टार्ट करेंगे जर्नी, या तुम एक्सप्लोरेशन फेज में होगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें ये बात पता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ पता होने से तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, समझ आ रहा है? हाँ, तुम्हें बहुत पता सारे होगा और फैक्टर्स हैं। तब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होगी, बट तुम्हें तुम्हें यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू बी दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको फैंसी वर्ड क्या होता है इसका, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि जो तुम्हारे इम्पल्सेस है, इम्पल्सेस ये होता है कि मैं अब ये चीज पे स्विच कर लूं, बट नहीं करना होता, यू हैव टू बी देयर, राइट? You have to focus on that thing. Okay, now I want to ask you that you have done some planning, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन ये है कि तुमने प्लान क्या किया है कि हाउ टू, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई आस्क यू, और मैं पिछला भुला दूँ, इफ यू हैव लाइक तुमने वीडियोस नहीं डाली, जो कि हर किसी के साथ होता ही है बिगनर में, इट हैड हैपेंड टू मी, इट हैड हैपेंड टू एवरीवन हु वाज स्टार्टिंग आउट ऑल देयर ओन। हम्म, सो उसको हटा दो, वो जो छोटा सा रिग्रेट कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वीडियो नहीं डाली, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू कि आप तुम कैसे कंटेंट क्रिएशन को आगे प्लान करना चाहती हो, या ओके, तो प्लान किया है? वह- मुझे सबसे पहले अपने लिए भी क्लैरिटी चाहिए, कि मैं किस टाइप पे के या कोई भी टॉपिक हो, मैं उसके लिए कैसे जाऊंगी। अगर मैं प्रीवियस अगर मेरा देखूं, क्योंकि कंटेंट ऐसी चीज है, मतलब अपन स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं बना सकते। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने बहुत सारा देखा है, कोई बोलता है फिटनेस नीश देख लो, टैग देख लो, या फिर जो भी ट्रेंड में चल रहा है वो चीज देख लो। ऐसा मेरे साथ नहीं है, मतलब मैं ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रह चुके हैं, या जो चीज मुझे लगता है कि मुझे ये चीज बतानी चाहिए, मतलब ऐसा मेरे पास बहुत सारी चीजें है। अगर मैं ऐसा खुद अगर मैं सोचूं, और अगर मेरे पास अगर कोई बैठा है और अगर उसको मुझे जीरो से चीजें बतानी है ना, तो मैं उसको बता पाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं कंटेंट फॉर्म में कैसे बताऊं, अगर ओके, उसको मुझे इंटरनेट पे लेकर जाना है तो। ओके, so tell me about your past experience. For example, I am at zero and I come to you, Vanshika, teach me something or help me with something, and you asked me, Shishir, what kind of help you want, and I said I don't know, you have something, now help me। कुछ भी हो सकता है ओके, वो है। तो जैसे मेरे पास्ट एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैं भी वो आपको बताती हूँ। हम्म, एक एक वो चीज है कि मेरा जो 12th वाला फेज था, उसमें मैंने यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन वाली प्रोसेस, अफर्मेशन वाली प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे से किया, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थी। मतलब अगर मैं बताऊँ तो मैं बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से कर रही थी। सारी चीज़ें देखी यूट्यूब पर कि कैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, एडमायर लेट है, उनको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, और वो बहुत अच्छा उनसे मुझे कनेक्ट होना अच्छा लगता है, यूट्यूब वीडियोज़ पर। तो वहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। फिर मेरा भाई है, वो भी उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में। तो मैंने अपने आप को, मतलब 6 महीने के अंदर मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही थी। मतलब 9th, 10th, 11th मेरी बिल्कुल डमी थी। मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी उस समय, डमी था उस समय मेरा। और फिर जैसे ही 12th आया, तो फिर पेरेंट्स ने बोला कि अब तो पढ़ लो, अब तो 12th है, देना है, बोर्ड्स है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि देख, तुझे मैं एक चीज बताता हूँ, अपने माइंड सेट को कैसे तू अच्छे से कर सकती है, अच्छे से फ्रेम कर सकती है। एग्जैक्टली।
तो मैंने बोला कि ठीक है तू बता। तो उससे मेरी जब भी बात होती थी लाइक 3-3 घंटे की कॉल होती थी हम दोनों की। वो मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन भी करता था और उसने ही बताया था कि लाइक तू यूट्यूब पे ये सारी चीजें सर्च कर और अपने माइंड को तू कैसे रिप्रोग्राम कर सकती है सारी चीजें। तो वो वाली चीजें मैंने स्टार्ट करी और फिर उसके बाद मैं सारी चीजों को राइट डाउन कर लेती थी लाइक कैसे करना है क्या करना है। तो सिर्फ लास्ट के 6 महीने बचे हुए थे मेरी बोर्ड्स आने के लिए। तो उस समय से मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, एक एम रख लिया और मैंने उस चीज़ के लिए मैं उस चीज़ के लिए लग गई कि लाइक अब तो ये करना ही है। तो सिर्फ मैं क्या करती थी विजुअलाइज़ेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा-सा यूज़ करती थी अपने लिए ताकि मैं उस चीज़ तक जा सकूँ। तो वो चीज़ मेरे से वो बहुत अच्छे से हुई और ऐसे मतलब मेरे क्वार्टरली में अगर मैं स्कूल के टाइम पे भी बताऊँ तो मेरे क्वार्टरली में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मार्क्स वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सब मेरे पे ऐसा बोलते थे कि हाँ, हाँ, क्या-क्या ऐसा-वैसा। मतलब फ्रेंड्स लोग तो है ही जो उड़ाने के लिए बैठे रहते हैं। तो बस वही। उसके बाद फिर हाफ ईयरली हुई तो थोड़ा प्रोग्रेस हुआ क्योंकि पढ़ाई कर ली थी और वो एक्शंस वगैरह लिए तो प्रोग्रेस हो गई उधर। फिर प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा हुआ मतलब जो कभी सोचा ही नहीं था। मेरा हिंदी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक था ओके। क्योंकि इंग्लिश का तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं लाइक वो वाली सी चीजें हो कौन सी जाती है। स्ट्रीम थी आप? मेरा कॉमर्स था ओके। और हमारे स्कूल में एक रूल था कि कॉमर्स का बच्चा कभी आगे ही नहीं जा सकता। तो एक उधर से भी वो था कि यार अब तो कॉमर्स वाले ही करके बताएंगे टीचर्स को बिल्कुल चैलेंज कर दिया था कि अब तो कॉमर्स ही होगा जो भी होगा। तो वो सारा फेज बिल्कुल अच्छा गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा वर्क किया मेरे लिए। मतलब मैंने कभी ऐसा बिलीव ही नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा एग्जाम भी कोई जाएगा। मतलब सारे बच्चों का पेपर जब मैं पेपर देकर आ रही थी तो बच्चे मुझसे पूछने लग गए थे कि वंशिका इसमें क्या करा और क्या नहीं करा। क्योंकि जबकि मैं तो उस स्कूल में 3 साल नहीं गई, सिर्फ मैं 6 महीने भी वो भी स्कूल नहीं गई। मैंने घर पे ही पढ़ा। मुझे पता था स्कूल में बिल्कुल टाइम पास होगा अपन घर पे ही पढ़ो ओके। हाँ, तो ऐसे करके ये पूरा ये चीज़ हुआ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइज़ेशन, अफ़र्मेशंस ये वाली सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगता है फैसिनेट और करती है। हाँ, ये चीज़ अच्छी लगती है। और फिर एट द एंड जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। मतलब वैसे मेरे फर्स्ट रैंक तो नहीं लगी थी स्कूल में, लेकिन हाँ, मेरी कॉमर्स क्लास में मेरी फर्स्ट रैंक लगी थी। दैट्स ग्रेट। ओके। सो बाय द वे, मैंने अब तक करीब 10-15 लोगों को हेल्प करी है, जिसके अंदर से 2-3 लोगों की मैंने वीडियोस ऑनलाइन डाली हैं। ओके। And who are starting out, they don't have their story. Right now you have your own story, right? You have a direction already. The thing is, you don't have a clarity or a plan or a strategy to start out, because when they are starting, they don't know what they like to talk about. They don't know. They are just saying कि I am committed, now tell me what should I do. So this is not with you. ये तुम्हारे साथ नहीं है. It means you have something you are passionate about, which is your plus point. Because when I was starting, I didn't have anything. I हाँ, like to talk about, finance, politics and government. I like to talk about that mental health thing, and I was also getting into this marketing thing. So I didn't know what should I speak about. As you said कि मुझे पता नहीं कि क्या बोलूं, because अब हुँ, मैं अगर 4 चीजें हैं तो मैं 4 चीजों के बारे में बोलूं कैसे, और बोलूंगा तो बस मैं कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस उतारूंगा, अच्छा नहीं हो पाऊंगा, क्या हो रहा होगा और कैसे करूंगा, मतलब एक चैनल पे 4 चीजें। सो दिस वाज माय थिंग कि मैंने इसमें, और ये बहुत सुनने में ऐसा लग रहा है बट बहुत डिफिकल्ट थिंग थी मेरे लिए। बट राइट नाउ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, विच इज योर प्लस पॉइंट। ओके। सो हाँ, हाउ वी मतलब स्टार्टेड। ओके। या। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें मुझे पता थी कि लाइक इसको और कैसे करना है। और फिर उसके बाद भी मतलब मैंने मतलब मेरे साथ ऐसा होता है या फिर पता नहीं ये क्या है। मतलब मैं जो सोचती हूँ ना वो चीज़ें हो ही जाती है। उसके लिए मैं थोड़ा एफर्ट डालती हूँ और वो चीज़ें 100% होती है मेरे लिए। तो पता नहीं दैट्स अब ये ग्रेट। क्या है, पर मुझे तो लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही बिलीव है। बिल्कुल ये होता है, ये आई हैव फेल्ट दिस थिंग, and I can relate to it कि होता है, चीज़ें होती है when you believe in things and when you have the courage to say the things, because होता क्या है कि suppose you want this thing, एक आपका dream है। okay, हुँ, I have a junior जिसके साथ मेरी कॉल हुई थी, and he is a video editor, he is just starting up. So initial days he told me that he wants to be हुँ, he wants to work with Marvel Studios some days, and right now he's starting. And then after some days I asked him that, okay, what's your dream? So he said कि वो ड्रीम नहीं हो पाएगा भैया, बिकॉज बहुत बड़ा है ना। सो द थिंग इज दे कांट से इट,
देख अगर वो बड़ा तो होना है, उसके चैलेंजेस होंगे, बट द थिंग इज यू हैव टू विजुअलाइज इट हियर दैट हाउ वुड इट लुक टू वर्क विद एग्जैक्टली, मार्वल. एंड एग्जैक्टली, I told him this one thing, that remove this word wants. I don't know so much about law of attraction manifesting, but so much I have experienced this. When you use the right word, it happens. For example, I want to be, and change it to this sentence, I will be. Right? This is showing the confidence, and this is a कॉन्फिडेंस, commitment to yourself that you will become. Because wants में क्या होता है, we can give excuses to ourselves subconsciously or consciously. But when you will become, you keep reminding that I will become. So the first problem I see with people, they don't say it out loud with to yourself. I'm not saying out loud सबको बोल दो, तुम खुद को बोलो कि मैं करूंगा. तो मैंने, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो मैंने ये सोचा भी था लाइक कि ये वाली जो जर्नी है मेरी 12th में, जो मैं 6 महीने के अंदर ही मैंने इतना कुछ किया. मैं पहले, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत पहले से मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें वो 12th उनने 11th में भी पढ़ी, और 12th में भी उनने 12th ही पढ़ी, मतलब 2 बार 12th पढ़ी उन लोगों ने, फिर भी उनके Okay. नंबर मेरे से कम है. तो मतलब मुझे ये सब चीजें अच्छा लग रहा है मुझे बताने में, Yeah, लाइक मैंने अचीव exactly. किया है You ये. achieved it. You experienced it. So हाँ, तो मैं सोची थी कि मैं ये 12th वाली जर्नी को भी एक रील फॉर्मेट में मैं इसको भी शेयर करूँ, ताकि उधर से भी कुछ ना कुछ हो, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस. और फिर मैंने ना अभी 7 डेज, मैंने आपको बताया ना, मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करी थी ये वाली. तो उसमें भी मेरा विजुअलाइजेशन वाला एक वीडियो था, मतलब मैंने दूसरे दूसरे वीडियोस भी रिकॉर्ड करे, और एक एक वीडियो मैंने विजुअलाइजेशन पे रिकॉर्ड किया था, जो मैं विराट कोहली को सुना था बोलते हुए. तो उनका इंस्पिरेशन लेकर मैंने अपने फॉर्म में थोड़ा बोलकर और वैसे वाला एक वीडियो बनाया था, क्लिप, और उसको मैंने, तो वो मेरा सबसे अच्छा वीडियो है अभी तक का. मैं 7 डेज में सबसे 7th वाला वीडियोस वही था, और वो सबसे अच्छा लगा मुझे. ओके, दैट्स ग्रेट. सो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस तुम देख नहीं पा रही हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक, फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारी एक रील है नाउ, आई वुड से कि जो ये मैं आई इवन wrote a title for you, that how I went from bad marks to good marks by understanding the law of attraction. You have already a topic, and you have everything because you are the creator. Now you are authentic creator. तुम या, किसी बुक को नहीं पढ़ रही होगी, किसी को नहीं जान रही होगी, बिकॉज यू नो द स्टोरी. एंड कंटेंट क्रिएशन में एक ही चीज है जो तुमको जिता सकते हैं, दैट इज स्टोरी टेलिंग. ओके, एंड व्हेन यू टेल योर ओन स्टोरी, पीपल कनेक्ट टू यू, राइट? एग्जैक्ट, So you have a story. Now you have to, first thing, you are starting out, so you will see a lot of jargons, like understand your target audience कि किन के लिए content बना रहे हो, उनका सोच के बनाओ. And there is something in marketing we call customer avatar, कि उसके लिए सोच के बताओ. हाँ, You don't have to care about these things. Okay, you just, because the only thing is to create. ये सब चीजें बहुत ही, because I have कोच पीपल, आई हैव टॉक टू पीपल, उनका यही होता है कि व्हाट्स माय टारगेट ऑडियंस, व्हाट्स माय अवतार, किसके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ. सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट यू हैव अ स्टोरी, डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. आगे भी ये चीजें आएंगी, ये मत हाँ, सोचना कि ये कौन देखेगा. ओके, पीपल विल वॉच इट व्हेन यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग, वो चीज आएगी. राइट? सो राइट नाउ यू हैव अ टॉपिक कि तुम बैड मार्क्स से गुड मार्क्स या इसको और अच्छा कर सकते हैं इफ यू गिव सम टाइम. अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, यू हैव दिस टॉपिक, एंड आई वुड से उस पर हम प्लेटफॉर्म पर अभी हम आएंगे, बट आई वुड से इट इज नॉट अ स्टोरी विच यू कैन अंडरस्टैंड, जो कि लोग समझ पाए 1 मिनट में या 40-50 सेकंड में. इट्स अ स्टोरी जो शायद 7-8 मिनट ले, 9 मिनट ले. सो गो विद यूट्यूब. अभी हम ओके, प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर तुम्हें कंटेंट बनाना चाहिए, बट आई विल ऑलवेज से कि यूट्यूब से बने रहो, बिकॉज यूट्यूब, ये वाली चीज़ है. अभी शुरुआत में यूट्यूब से बने रहो. हम जहाँ ऑडियंस क्रिएट कर रहे होंगे, भी प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे होंगे, बट फॉर दिस टॉपिक आई वुड से कि गो विद यूट्यूब. 40 सेकंड में तुम्हें खुद पसंद नहीं आएगा कि तुम क्या बताओगे. अपनी स्टोरी बताओगे, लोग कहेंगे वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड. ये भी एक रूल है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, नो वन इंटरेस्टेड इन यू, नो वन केयर्स फॉर योर कंटेंट, नो वन केयर्स चाहे तुमने 3 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगा के वो वीडियो बनाई है, वो पोस्ट बनाई है. दे डोंट केयर. उसके वहां पे तो हजारों रील्स हैं, जिस स्क्रोल इट. उनको नहीं पता that कितनी मेहनत पीछे जा रही होती है. इवन दे विल कमेंट कि बेकार वीडियो है, चुप करना. एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, वो वुमेन वाला जो मीम कॉमेडी चलती है कि वुमेन एंड ऑल एंड ऑल, देयर आर लॉट्स ऑफ नॉइज आउट देयर. सिर्फ ऑडियंस की नहीं, क्रिएटर्स की भी. यू विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल क्रिएटर्स,
they are telling you some business model, they have not done it. Right now you have already, are better than them for me. Why? Because you are talking about your experiences. You have done it, now you will talk about it. There are lots of people who talk about business models कि go and start this business model, and छोटे मोटे creators नहीं, अच्छे खासे जिनके follower है. The thing is कि you are not doing that business yourself. You have not done that business yourself. So if you have not experienced it, so you are just reading something from book or some news. What's the point of creating content? I can read that. That's just, why you are better than them, or why you will be so much better than them. Because you have a story. They don't have a story. They will tell you a business model which they understand, or read a book or read a case study, and they are telling you. They are just वो एक बस information pass करने का जरिया है. And now when you tell story कि तुम कैसे bad marks से good marks पे गई lower traction में, there is some conflicts, so some pain, and then अच्छी चीज हो रही है, conflicts आए, फिर अच्छी चीज हो, there is a story. When people will hear you, they will get value कि अच्छा law of attraction ऐसे काम करता है, this is the understanding, and they will connect with you कि वंशिका did this. Okay, जब वो हार रहे होंगे, या जो तुम जिस पोजीशन में तुम थी वो उस पोजीशन में होंगे, they will remember you. What's happening over here? They are forming a connection with you. And as a content creator, as a marketer, when you are trying to build your audience, because eventually you will sell them something to earn money, or you will create a community. So when Yeah. you will sell them, you are not selling them, you are telling them, let's strengthen our relationship, come join me, and they will happily be with you. Okay, they are not, because एक business, और ये जो चीज है तुम ही कह सकती हो, तुम्हारा कंटेंट कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, because this is your experience. एंड आई कैन कॉपी द बिजनेस मॉडल. जो उस क्रिएटर ने बिजनेस मॉडल की वीडियो बनाई है, मैं भी थोड़ा स्टडी करके बिजनेस मॉडल की वीडियो बना सकता हूँ. मैनी पीपल गो विद दैट काइंड ऑफ कंटेंट टू गेन अट्रैक्शन, कि लोग आएंगे, सुनेंगे, बट दे आर लिसनिंग टू द बिजनेस मॉडल, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू. सो पर्सनल ब्रांड का फायदा क्या हुआ? पर्सनल ब्रांड मीन्स पर्सनल थिंग्स पर्सनल which थिंग्स, या एग्जैक्टली, which मैं वही creates बताना, influence on the people, right? So मैं you वही have फील कर रही थी कि लाइक पर्सनल ब्रांड मतलब खुद का ना, वो पर्सनल मतलब खुद exactly का. तो वही exactly तो मतलब सब बोलते हैं कि लाइक स्टार्ट कर दो, कुछ भी स्टार्ट कर दो, लाइक कॉपी पेस्ट कर दो. तो यार no. वो वाली चीजें कहीं ना कहीं मुझे वो कर रही थी कि यार कैसे हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि जब तुम स्टार्ट भी करोगी, शायद फिर कोई नई चीज आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, एंड आई से दिस टू एवरीवन, कि व्हेन यू आर ऑन इंस्टाग्राम और इन यूट्यूब, पे बहुत फोकस करो कि किसे तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, किसे तुम फॉलो कर रहे हो. डोंट जस्ट फॉलो कि अच्छा ऐसे बस फीड पे आ गया, अच्छा लग रहा है. अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप उसे फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, दे हैव बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ ना. सो तुम्हें अपने फॉलो बटन के साथ बहुत प्रिसाइजली होना पड़ेगा व्हेन यू आर क्रिएटर, और व्हेन यू आर इवन फॉलोइंग योर कॉम्पिटिटर्स. होता क्या, व्हेन यू आर स्टार्टिंग कॉम्पिटिटर, मतलब कि वो यहाँ पर है, बहुत आगे है, और हम यहाँ पर है. होता क्या, वी स्टार्ट कंपेयरिंग, यार इसका अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा. सो आई हैड, मेरे साथ भी हुआ. सो द सिंपल थिंग इज आई अनफॉलोड देम. जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो आई गो टू देयर चैनल, अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी रिसर्च. बिकॉज आई डोंट वांट टू मैं इस बात को कहता हूँ, आई से इट आउट लाउडली. बहुत लोग कहते हैं कि मुझे इनसिक्योर फील नहीं होता सोशल मीडिया पर. आई फील इनसिक्योर व्हेन आई सी समवन डूइंग बेटर देन मी इन माय फील्ड, बिकॉज आई एम डूइंग सो मच. कोई वो थॉट्स आने लगते हैं ना कि क्या पता इसके पास ना पैसे ज्यादा अच्छे होंगे, इसके पास ना प्रिविलेज है, ये है, इसलिए अच्छा कर रहा है, वरना मैं कर देता. आई हेट दिस थिंग. अब मैं इस बात को नहीं बोलूंगा कि मेरे दिमाग में नहीं आती, आती है. एंड एक्सेप्ट दैट, दैट इज द थिंग, कि एक्सेप्ट करो कि आती है. एंड दैट्स उसका सोल्यूशन मेरा ये कि आई अनफॉलो देम. मुझे नहीं सुनना अभी, मेरे को अपने पर काम करना है. सो ये जो चीजें है ना कंटेंट क्रिएशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कोई आके, और सबसे बड़ी चीज व्हेन यू आर स्टार्टिंग कंटेंट, मैं अभी बता देता हूँ कि व्हेन यू विल पुट वीडियोस आउट, यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग मेंटली, बिकॉज देयर विल बी पीपल हु विल कमेंट रबिश अबाउट यू, हु विल उसका एक कमेंट भी तुम्हारे शायद मेंटली हिला के रख दे कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, एंड इसको ये लग रहा है, इसको लग रहा है मैं कॉमेडी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं फालतू में हूँ, क्या करूँ. तो वो मैं कहता हूँ, डोंट वेस्ट इवन अ मिनट ऑन दैट थिंग. और ये चीज भी अब कैसे आएगी, होता है फर्स्ट कमेंट आया एंड यू जस्ट गॉट अपसेट अबाउट इट, एंड अगेन यू गॉट अपसेट अबाउट इट, एंड इट हैपेंड अगेन एंड अगेन, नाउ यू आर नॉट गेटिंग अपसेट. सो यही एक सोल्यूशन है, इसका और कोई सोल्यूशन ही नहीं है. बस दिमाग में कुछ बातें रख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अभी बोलना बहुत आसान होती है ना चीजें, कि ये कर रहूंगा, एक हफ्ते में 3 वीडियो डाल दूंगा, आराम से आराम से आराम से हो जाएगा, बट होता नहीं. सो एग्जैक्टली सिमिलरली
जब हम कहते हैं कि हमें परेशान नहीं होना, असल में हम परेशान हो जाते हैं। तो द थिंग इज कि ये बोलना ठीक नहीं कि परेशान मत हो, ये बोलना ठीक है कि जब मैं परेशान होऊंगा तो मैं खुद को ये बातें बोलूंगा कि इन लोगों को नहीं पता है, ये तो बस अभी पता नहीं कहाँ कहाँ कमेंट कर रहे होंगे, दे आर, और ये खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। काफी लोग तो जो ऐसे कर रहे होते हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड देमसेल्व्स विद देयर लाइफ। फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, ओके, एंड फॉर एग्जांपल टेक माय एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जब भी मैंने बोला कि जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, ओके, कि मैं ये अच्छा करा, मैं नहीं करा। अब ये जो फीलिंग है, मैंने इस फीलिंग को कॉप अप कैसे करा, मैंने कहा भाई मैं अनफॉलो कर दूंगा और अपने ऊपर काम करूंगा। बट दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने अनफॉलो नहीं करा और मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा 1-2 हफ्ते से, मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट थिंग। अब उस फलाने बंदे की वीडियो आती है एंड मैंने क्या करा, कमेंट कर दिया बेकार वीडियो है, योर वीडियो सक्स, ये चीज। तो मेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी खुद की, मैंने उस पर निकाल दी जो उसकी वजह से हो रही थी। सो तुम्हारा कंटेंट शायद बहुत अच्छा हो लेकिन वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। इसका एग्जांपल एक बुक रिव्यू से भी, व्हेन यू गो टू अमेजोन, अमेजोन के रिव्यूज में किसी ने 1 स्टार दे रखा होता है, उसको वो बुक बहुत अच्छी है लेकिन 1 स्टार दे रखा है, शायद पैकेजिंग खराब है या कुछ खराब है, लेकिन बुक अच्छी है, तो हम उस रिव्यूज पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते। सिमिलरली उस वो कमेंट कभी डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा कंटेंट कैसा। ओके, नाउ एग्जैक्टली। कमिंग टू, नाउ यू हैव योर नीश, ओके, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, you have your niche now. Okay, I will tell you two things, that you have your niche, and what's that niche? That is law of attraction, manifestation, visualization. And why? Because you have experienced it. So अब पता है क्या प्रॉब्लम नीश चूज करने में नहीं होती, इवन यू डिडंट जस्ट चूज नीश कि तुम्हें 10 लिस्ट दे दी मैंने कि वंशिका चूज करो एक, तुमने एक्सपीरियंस कर रखा है एंड यू आर ऑल्सो फैसिनेटेड बाय इट। सो द प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी तुम स्टार्ट कर दोगे तब तुम्हें लगने लगेगा कि यार इससे बेहतर नीश हो सकता है जो मैं कर सकती हूँ, शायद मैं किसी और चीज में बढ़िया कर सकती हूँ, उसके बारे में बोल सकती हूँ। जैसे मुझे क्या लगा जब मैं फाइनेंस के बारे में स्टार्ट करा, मेरा बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में। तो मैंने सोचा यार काफी लोग जियो पॉलिटिक्स के वीडियोस बना रहे हैं, और जब मैं उनकी वीडियोस देखता था तो एक हैबिट थी कि यार ये गलत बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है, जैसे रणवीर अलाहाबादिया एंड दीज ऑल राशमानी, द पॉडकास्टर्स जो हैं, दे आर पॉडकास्टिंग पॉलिटिशियंस। ओके, आई हैड अ थिंग कि मैं एक दिन करूंगा, एंड व्हेन दे डिड इट आई गॉट सो एक्साइटेड, ओके दिस इज माय थिंग एंड आई विल वॉच इट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट आई थिंक कि ये एक्टर्स थोड़ी हैं, ये क्रिएटर्स थोड़ी हैं, इनसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। इफ दे आर पॉलिटिशियन यू शुड आस्क सम रियली हॉट क्वेश्चंस, दे डिडंट आस्क इट। ओके, एंड वी एम्फेसाइज ऑन दिस कि फ्री स्पीच होना चाहिए। सो आई थिंक अब मैं खुद को ही कहता हूँ कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, why I'm giving comments to them, but I think I stay honest with myself and I still believe कि जो politicians आए they didn't ask any tough questions, they hot questions. What's the point of interviewing politicians? You must have that courage, and I have not left that thing. Right now this podcast with I have this mission कि मैं यहाँ पे कम से कम 100 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, and then I will switching to the different topics. Here I can try anything, I can speak about anything because this is the Shishir Vardhan podcast, like my name. And now coming to the second part, as I said, my name, the Shishir Vardhan podcast. And now you have a niche, you got your niche, manifestation, visualization. I will tell you more about how to be better at your niche, और हाउ टू बी मेक पीपल बेटर एट, मतलब कि जो तुम्हारी ऑडियंस है उसको कैसे बेटर बनाना है। दूसरी चीज कि फॉर एग्जांपल मेरा क्या था कि मेरे को काफी टॉपिक्स पे बात करने थे, सो मैंने नीश क्या स्पेसिफिक कर लिया, फाइनेंस। एंड सिमिलर टू यू, बिकॉज मैं जब 9th 10th 11th 12th 4 साल जो थे, हमको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, एक सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट। सो मुझे ये लगा कि यार मैंने फाइनेंस पढ़ रखा है, कॉलेज भी मैं फाइनेंस पढ़ने गया था, 2-3 महीने मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे वो पसंद ही नहीं आया जो उनका करिकुलम था। सो आई शुड स्टार्ट विथ फाइनेंस। इफ यू गो ऑन माई इंस्टाग्राम, मेरी शुरुआत की वीडियोस वही है, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो भी फाइनेंस की ही है। लेकिन कुछ देर करने के बाद, कुछ टाइम करने के बाद आई अंडरस्टूड कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, आई हैव एन keen interest about finance, but I don't want to create content about finance, right? Because finance is all about numbers, data, analytics, and I wanted to create something else. I have still interest, I still do things, and most important thing, when I was talking about finance, and finance is all about investing, mindset. I can talk about mindset, but mindset comes from doing that thing. For example, experience thing. I'm talking about finance, but I have not invested anything because I'm just a beginner. How would I have money to invest? And तो वो मेरे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को बता पाऊँ हाउ दे कैन इन्वेस्ट।
बट जो बहुत लोग जो फाइनेंस का एक बूम आया था जहाँ पे हर क्रिएटर फाइनेंस क्रिएटर ही दिख रहा था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ मनी देयर, तो हर कोई बंदा फाइनेंस का कंटेंट बना रहा था, एंड नाउ वी डोंट सी देम, अब वो गायब हो गए। सो हमको किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, वी आर थिंकिंग अबाउट कमिंग 10 years कि हम 10 साल तक भी जो हमारा कंटेंट है इट स्टेज, वो रहे वैल्यूएबल, एवरग्रीन रहे। तो हमको उस परस्पेक्टिव 10 साल नहीं तो कम से कम 6 साल लेके चलो। 10 साल सुन के काफी लोग सोचते हैं 10 साल का कैसे प्लान कर ले। आई एम सेइंग 5-6 साल तो तुम्हारा आगे का 5-6 साल का विजन लेके चलो, एंड 5-6 साल भी यू डोंट वांट कि मैं गायब हो जाऊं इफ यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स का क्या होता है, एक वही है कि पहले आते हैं धीरे धीरे, फिर एकदम बूम आता है एंड दे जस्ट गो डाउन। सो वी वांट दिस कि हम बने रहें। सो विद दैट थिंग हमको ऐसी चीज कमिट, इस चीज के साथ कमिट करना चाहिए जिससे हम फैसिनेटेड हो। अब मैं दूसरी चीज पर आता हूँ, ये नीश की बात होगी, दूसरी नीश पे एज ए सेट की द शिशिर वादवन पॉडकास्ट। अब व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट। सो आई स्टार्टेड कि इस पॉडकास्ट में मैं हर टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर फील्ड के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ राइट नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, जो ये नीश है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग एंड ऑल दैट थिंग, यू आर नोन बाय दिस नीश। ओके, होगा क्या, तुम्हें करना क्या, इफ यू आर हैविंग लॉन्ग विजन कि तुम्हें खुद नीश बनना है, यू आर द नीश। इसके बारे में कुछ लोगों ने बात करी भी है, बट आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, यू आर द नीश। मतलब क्या है, तुम्हारी लाइफ में अब जो हो रहा है, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग विच यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल 4-5 टॉपिक हर किसी के लाइफ में निकल के आते हैं कि मुझे इन टॉपिक्स पर बात करना पसंद है। सो कुछ साल बाद जब तुम्हारा एक ऑडियंस बन जाएगी, सो स्पीक अबाउट एवरीथिंग यू लाइक, no one will question you, no one will question your credibility, anything you like, because now Vanshika is the niche. I follow Vanshika because of Vanshika, not because of her content, right? For example, take example of Ankur Warikoo. He started with finance content, but अगर अभी तुम उसकी YouTube videos देखोगे, he's talking about he's showing his workout videos कि मैं workout कैसे करता हूँ। He's telling stories about his personal life with his wife or with his kids or with his team. So what's happening here? And he's also selling the courses about social media marketing, like Instagram courses, YouTube courses. So what's happening here? ये बंदा करता क्या है? He started with finance, a niche, and then with few years जब एक audience बन गई, he went diverse. I will talk about everything which I like because people listen me because of me, not because of my content. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि जब लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, राइट नाउ यू एंड आई ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम, कि हम स्टार्टिंग से सोचते हैं हम सब इंटरेस्ट पे बात करें। ऑल तो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यू हैव योर ओन थिंग, और मेरे साथ थी कि मुझे सब पे बात करनी, बट इट इज़ नॉट द राइट वे। एंड सारे लोग कहते हैं कि बिकम नीश, यू आर द नीश, बट दे फॉरगेट टेलिंग कि जिन, अब जैसे फॉर एग्जांपल गैरी वी आल्सो डजंट हैव नीश, वी लिसन गैरी वी बिकॉज ऑफ गैरी वी। जो रोगन टॉक्स अबाउट कॉमेडी, ही इज आल्सो कॉमेडियन, ही आल्सो टॉक्स अबाउट एलियंस, हेल्थ, मैन, different topics. But when Joe Rogan started with one thing. Okay, जब गैरी वी ने स्टार्ट किया, he started with selling wine. Okay, wine was his niche. So everyone starts with a niche, and then जब एक audience build हो जाती है, then they go diverse. Okay, वो बाद में क्यों डाइवर्स हो रहे होते हैं? बिकॉज नाउ दे हैव अर्नड द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट जीत चुके ऑडियंस का। पीपल रिमेंबर देम, दे कि हाँ यार, आई नो हिज फेस, ही इज डूइंग गुड वर्क, और वो तुम्हें सुनेंगे चाहे तुम कुछ भी कह लो, क्योंकि एक ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी होगी। ओके, so you got the thing? Any question? Okay, so now coming to your niche, which is law of attraction, manifestation, visualization. As okay, remember the question जो कि मैंने भी तुमसे पूछा. For example, I come to you and I asked you, Vanshika, help me. I am beginner, and you told me a story. Now I am being honest to make you. I'm not to make you better. That when you told me a story, you didn't help me. You told your own story. So the rule says that care about people, tell them what they need, and connect your story to give them. For example, I came to you and I asked you, okay, Shishir, you want my help? I will teach you the law of attraction. And I'm beginner. So what would you do? You will start with a story. Okay, this happened to me. I was really bad at studies. I didn't go to school, but when I got into the 12th standard, my parents told me to study, and there I found the meaning of law of attraction. I didn't just found, I experienced it.
सो यहाँ पे अभी क्या स्टोरी स्टार्ट हुई एंड यू वाज जस्ट पुटिंग इट एंड नाउ इसका आई फाउंड एक्सपीरियंस इट। जब अब तुमने मुझे स्टोरी बताई यू डिडंट मेंशन व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। सो नंबर 1, बी स्पेसिफिक ऑफ द कॉन्सेप्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। जब तुम एक वीडियो बना रही हो या एक रील भी बना रही हो, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चन कि व्हाट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल अबाउट दैट वन थिंग। डोंट इवन अगर वो 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो भी ना, स्टिल वन थिंग। क्या, क्योंकि हम जब वीडियो स्टार्ट हुई तो वीडियो स्टार्ट होने में मैं हुक पर भी बात करूंगा। यू हुक द पीपल, यू वर आस्किंग की स्क्रिप्टिंग और स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर रील्स बना रही हो, शॉर्ट फॉर्म्स बना रही हो, तो शुरुआत के जो 4-5 सेकेंड हो गए, 6 सेकेंड हो गए, स्टार्ट विथ समथिंग दैट मेक पीपल केयर। केयर मतलब वो परवाह करे, ओके आई हैव टू लिसन दिस, आई नीड टू लिसन दिस। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी हुक कि हाउ आई वेंट फ्रॉम बैड मार्क्स टू गुड मार्क्स बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। हियर मी इन एंड आई मैं 1 मिनट में समझाऊंगी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन 1 मिनट। तो ये कुछ सेकंड्स में यू जस्ट हुक देम एंड नाउ यू आर डूइंग इट। और फॉर एग्जांपल यू आर ऑन यूट्यूब वीडियो, ये 1 मिनट मैटर्स मोर। शुरुआत के 30-40 सेकेंड बहुत मैटर कर रहे होते हैं। सो तुम्हें वहां पर हुक करना है कि कैसे तुम करिए, उनको क्यों केयर करना चाहिए। ऑलवेज थिंक बी यू स्पेसिफिक। यू स्पेसिफिक क्या होता है? ऑलवेज टॉक इन यू। फॉर एग्जाम्पल हाउ यू कैन गो फ्रॉम जीरो टू हैव achieving good marks by understanding law of attraction. You need to hear this, because when people listen you, they care. Okay, she is talking to me. For example, you say how I went, right? You can still say how I went and people will listen to you because they are interested. But what I'm trying to say is ki always say you, that you can do this, you should hear me because I have done this, I have experienced this. Be you specific and always have one thing in your mind कि मेरे को क्या चीज समझानी है. For example, you want to teach them law of attraction, or for example manifestation, just switch to it कि manifestation समझानी है. Manifestation समझाते हुए don't switch to law of attraction or don't switch to different things. Okay, so one thing at a one time, because होता क्या है कि when we tell one thing to the people, they listen and they are not distracted. So जो end में हम उनको जो CTA है जो हम create करते हैं, CTA यानी कि call to action लास्ट में, so the people take that action. जब हम उनको बहुत सारे actions provide कर रहे होते हैं, ये तो उनको समझ नहीं आता. हमको उनको बहुत ही एक चीज करनी है कि जाओ और ये चीज करो, या जाओ या ये चीज करो. ओके, सो और इससे ये भी सीख सकते हो कि व्हेन वी आर ऑन यूट्यूब, डोंट टेल देम टू लाइक. बहुत लोग करते हैं कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. बी वन थिंग कि इफ यू वांट दिस वीडियो टू बी शेयर, जस्ट टेल देम शेयर दिस वीडियो, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो. Okay, right now you're starting, so you will say ki I don't want subscribers, I want people to see it, so please make sure you share this video. And with your content too, be one idea. That's in marketing language we say कि one idea means कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. One viewer or reader, जब लिख रहे हो तो one reader, बोल रहे हो तो one viewer. And what does it mean one reader? तुमको जब तुम लिख रही हो अपना कंटेंट या सोच रही हो, तुम्हें सोचना है कि सिर्फ एक इंसान ये सुनेगा, एक इंसान, that one people, one, उसके लिए तुम लिख रही हो कि जो वो एक इंसान है, तुम उसके लिए बोलोगी तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल तुम किसके लिए बोल रही हो? तुम एक 10th क्लास की या अपनी 11th क्लास की लड़की के लिए बोल रही हो जो कि अभी पढ़ना चाहती है बट पढ़ नहीं पा रही है ना. हाउ, तो बस उसके दिमाग में रख के सब बोलो. ये नहीं सोचना. हमको तभी हम बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे जब हम एक इंसान को पकड़ लेंगे, क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को सोच रहे होते हैं कि इसको पसंद आएगा, उसको पसंद. सिर्फ एक इंसान को सोच लो कि इसको पसंद आएगा, बस it will work. Okay, so be specific, it means one idea. And now be basic and simple. For example, तुमने बहुत घंटे यूट्यूब पर दिए हैं इसको समझने में, एक्सपीरियंस करने में. होता क्या है कि हमको लगने लगता है कि हम स्पेसिफिक, बहुत सिंपल होना है, बहुत ज्यादा सिंपल, कि कोई बेवकूफ भी सुने या कोई जिसको पता ही नहीं दूर दूर तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, उसको भी समझ आ जाए. इतना सिंपली बोलना सीखना है, हर चीज को एक्सप्लेन करना है. और शुरुआत में क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, आई स्टार्टेड ओवर एक्सप्लेनिंग. एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड आई थॉट दिस वाज माय वीकनेस कि यार ओवर एक्सप्लेन क्यों. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, सो आई हैड दिस थिंग कि मेरे को लॉन्ग वीडियोस बहुत पसंद थी. मतलब मैं जब बोलने लगता तो वो 1 आधे घंटे की चली जाती थी. एंड उस टाइम नॉइज का कैसे मैं शिकार बना, बिकॉज एवरीवन सेइंग कि शॉर्ट फॉर्म इज द स्कोप, शॉर्ट फॉर्म में ही बनेगा, शॉर्ट फॉर्म पे बनेगा. एंड आई थॉट ओके, पीपल आर सेइंग शॉर्ट फॉर्म, I will follow short form. And not just people, even the
जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जिनकी एडवाइस हमें सुननी चाहिए, मैंने उनकी सुनी। एंड आई सेड ओके आई शुड गो विद शॉर्ट फॉर्म एंड आई स्ट्रगल्ड। मेरे को शॉर्ट फॉर्म आया नहीं, मुझे 30 साल मुझे समझ नहीं, आई स्टिल डोंट गेट इट कि 1 मिनट में मैं उनको कुछ सिखा ही नहीं सकता, कुछ बता ही नहीं सकता, राइट? सो वो इंटरटेनिंग कंटेंट तो है नहीं, व्हाट शुड आई डू? तो मतलब मेरे महीने इसी चीज़ में बीत के सोचने में कि मैं लॉन्ग फॉर्म में मैं अच्छा हो सकता हूँ, बट लॉन्ग फॉर्म में कोई स्कोप नहीं है, जो कि एक मिथ था। एंड देन शॉर्ट्स में मेरे को आ नहीं रहा करना, मुझे वीडियोस बनाने नहीं आ रहा, मुझे हुक करने नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 3-4 सेकंड में कैसे हुक कर दूँ जब टॉपिक इतना बड़ा है। एंड 3-4 दिमाग में बस एक ही है कि मैं इनको सिखाऊंगा कैसे 1 मिनट में कोई चीज़। My first video reel was about digital e-rupee, and digital e-rupee is a finance concept, and इसको समझने की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स चाहिए, तो वो मैं 1 मिनट में कैसे समझा दूँ? And then I saw finance with Sharan on the same topic after some days, and he didn't teach anything. He just cracked some joke about digital e-rupee, and it worked. But again, I don't want that. I still don't want that. I don't want to be entertainer. I want to be educator, because education is something which changes people life. Entertainment just makes them feel entertained, they feel good. But what eventually ultimately makes them feel good when they change their life, when they transform their life? For example, we are having a talk right now, and uh, you will do something and something will change. For example, you can see on the podcast previous episode, Sunita is was an employee 9 to 5, and she wanted to learn copywriting. So I told her, and I gave her roadmap. Made everything available to her, and she started learning. She even left her job. So that's the change I made in her life. That's the transformation I gave her because of long form content, not just by a reel. So this was the thing I understood, and on that day, I understood that I should not listen to the people out there. I should listen to me, because I know what works for me, right? So this will that's why I said that don't be in that noise. Become peace. उसके अंदर उस peace बनो, because बहुत noise है. And अभी for example you are starting, for example how again, you know, I became the मैं शिकार बना noise का कैसे? When I starting out, I started learning copywriting. So हुआ क्या कि जब मैं copywriting सीख रहा था, अपने learning phase में था, तो चैट जीपीटी लॉन्च हो गया था और एआई आ गया, और उस समय इफ यू रिमेंबर देयर वाज टू मच नॉइज, एवरीवन वाज स्केयर्ड, because every creator of every other people was making them scared. They don't know anything about AI, anything about chat gpt, they have not used it, they have not learned it, but they were saying on their reel that AI will take your job, and lots of noise. And I heard that and I got so worried कि मैंने अभी 3-4 महीने पहले सीखना स्टार्ट करा, and I gave lots of hours into understanding copywriting. I wrote a lot of pieces, and then I got worried. Chat GPT आ गया, it will take my job, I should switch. And I switched it. And after 1 year, it's been 1 year, I I see back and I see that was the wrong decision. That was the stupid move, because now I worked on ChatGPT. I have learned a lot of things in ChatGPT about prompt engineering, and it can't replace you. It can't replace a good copywriter. Even when you go on Upwork, you see a lot of profiles, freelancing ki, they clearly say that we don't want someone who just use ChatGPT. They want people. They want to work with people. So ये बात बहुत देर में समझ आई. So यही चीज़ है कि when you are starting out, किसी के भी बात में मत सुनो, because they किसी की बात मत सुनो, इसका मतलब नहीं उनकी परवाह मत करो. कुछ लोग हैं उनकी चीजें सुनो, बट ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, दिस डज इट वर्क फॉर मी? इट्स लाइक अ गेम. फॉर एग्जांपल हम कोई खेल खेल रहे होते हैं, एक अगर प्लेयर है, राइट, अब वो कोई खेल खेल रहा है, वही गेम को खेलने का तरीका अलग होगा किसी और प्लेयर का, राइट, क्योंकि उसको उस तरीके से खेलना पसंद है, इस प्लेयर को इस तरीके से खेलना पसंद है. एंड यू आर ऑल्सो प्लेयर इन दैट ग्राउंड, लाइक ग्राउंड ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन. And there are lots of great players than you, but they have their own ways of playing which you can't copy, or which you should not hear. You should form your own way, because you are going to play that game. They are not coming and telling you play this game, because what would happen? They told you a way, you heard it, or they got views, or they got subscribers, and you implemented it, didn't work. They again told you a way, and it worked for them, and now they are selling that way, that come and join my mentorship, come and join my coaching, buy this course. They sold you, and again the
वे डिडंट वर्क टू यू एंड यू जस्ट सेड कि मेरे लिए वर्क नहीं करा एंड शायद मेरी गलती होगी. दिस इज हाउ यू बिकम ये बहुत बड़ा केओस है मुझे जो लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग का भी, फ्रीलांसर का भी. देयर इज अ क्रिएटर, I don't want to name her, but she's always saying that learn copywriting in 1 month, earn crores of rupees in this month. They don't understand कि copywriting is not for everyone. You have to understand ये तुम्हारे लिए है या नहीं है, and you have to give hours and hours and understand it. But जो नए स्टार्ट कर रहे होते हैं, they see कि यार मैं 10,000 रुपये देख करके 1 करोड़ बना लूंगा, कोर्स मिलेगा. No, don't do that thing. तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि लगेगा कि यार ये कोर्स खरीद लूँ तो शायद लाइफ बेटर हो जाएगी. बट कोर्स मत खरीदना शुरुआती टाइम में. व्हाट वुड आई से, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वुड हैपन कि जब ये कोर्स कॉल हमारी खत्म हो जाएगी, आई विल प्रोवाइड यू लिंक टू आवर कम्युनिटी इफ यू वांट एनी टॉपिक. सो जस्ट राइट टॉपिक्स इन द ग्रुप एंड इन द फेसबुक ग्रुप एंड आई विल ट्राई टू कम अप with everything I can which will help you, which will. तो तुम्हें कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोर्स खरीदना चाहिए, इवन आई बॉट, बट कब खरीदना चाहिए? सिंपल सा है कि किसी का भी, अब कोई भी इंसान या क्रिएटर तुम्हें पसंद आया, यू वांट टू बाय कोर्स, उसका कोर्स खरीदना चाहते हो, सो उसका कोर्स खरीदने से पहले उसको कट कर दो उस दिमाग से एंड गो टू हिज फ्री कंटेंट. इसका फ्री कंटेंट कैसा है, यूट्यूब पर कैसा है, क्या ये बहुत हेल्पफुल है, और फिर जो फ्री कंटेंट है उसको अप्लाई करके देखो. इट इज वर्किंग फॉर यू, यस इट इज वर्किंग. और वो फ्री कंटेंट कंज्यूम करके तुम्हें लगा कि हाँ इसका फ्री कंटेंट अच्छा है, मेरे लिए वर्क करे, देन आई विल बाय. होता क्या है कि पीपल डोंट डू दैट. पीपल सी, क्योंकि क्या होता है कि एक रील देख करके तुमने, सपोज करो एक रील आई और बहुत ही अच्छी एडिटेड हो रखी है रील, हुक हो रखी है, और तुम्हारी इमोशन, अभी हम इमोशन की बात करेंगे, तुम्हारी डिजायर से, तुम्हारे पेन से वो बात कर रही है रील. तुम्हारा ये पेन है, आई विल हेल्प यू, आई विल मेक यू डू दिस, इस चीज में स्टक हो, आ जाओ बताता हूँ, और इस लिंक को क्लिक करो एंड यू सेड ओके फ्री वर्कशॉप है, ओके आई विल गो, फ्री वर्कशॉप है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं ये मैसेज करता हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग कोचिंग कॉल और आई विल हेल्प यू, पीपल थिंक कि अपसेल है, बाद में मुझे कुछ सेल करेगा ये कोल्ड. मैं तो आई डोंट वांट टू सेल यू एनीथिंग, बिकॉज दे हैव दिस थिंग, दे उनके साथ वो हो रखा है. फॉर एग्जाम्पल यू बुक्ड फॉर वर्कशॉप के साथ बिल्कुल, अब 1 घंटा दे विल प्ले विद योर डिजायर्स, दे विल प्ले विद द पेन्स ऑफ द बिगनर्स, एंड एट द एंड दे विल सेल यू कोर्स एंड यू आर पोजेस्ड बाय आवर इमोशन. हम अपने इमोशन से चल रहे होते हैं कि हाँ यार अब करना पड़ेगा, 5-6 हज़ार रुपये तो है, मेरी लाइफ चेंज जाएगी ये चीज, एंड यू बाय दैट कोर्स. सो ये चीज, इस चीज को बहुत अवॉइड करना शुरुआत में. चाहे इवन तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, पैसा है भी तो उसका फ्री कंटेंट बहुत कंज्यूम करो. अगर वो बहुत अच्छा कंटेंट है, देन गो टू हिज पेड कंटेंट. That's the game. That's what I am playing. I'm trying to put content right now. I'm not trying to monetize. I'm not trying to sell anyone anything. I'm trying to make my free content better than the paid content out there. Right? कि जो paid content है उससे मेरा free content बहुत better हो जाए. Right now people talk about, for example, and why I have this vision कि मैं जो सक्सेसफुल लोग भी हैं उनको भी पॉडकास्ट पे इनवाइट करूंगा. बट मेन प्रिंसिपल क्या है इस पॉडकास्ट का, कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको पॉडकास्ट पे लाया जाए. बिकॉज एज यू सेड कि मेरा फर्स्ट टाइम है पॉडकास्ट पे, दे फील स्पेशल कि यार आई एम द गेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, राइट, आई एम नॉट ऑन अ कोचिंग कॉल. So and you will be, when this video will upload, people will see you, okay, this is Vanshika, we have seen her, right? So people say कि जो बड़े बड़े creators भी होंगे कि we care about people. If you care, why don't you talk about those people? Why don't you talk to them? You talk to the big creators, the fancy things always on your stories, always on your posts. If you really care about people, talk to those people. So they don't talk, right? So this is what I found कि इस noise में मैं इस तरीके से अपनी place create करूंगा. And now you are starting in this, law of attraction visualization. There are people who will be talking about. You have to observe कि क्या चीज मिस कर रहे हैं. So you may find कि कोई भी स्कूल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में. Everyone is talking about कि जो जॉब में है, जो यहाँ कर रही हैं, पैसा कैसे कमाएं, ये सब. Now I have this thing कि मैं स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, because I experience it. I will talk to the school students, right? So you have this advantage जो कि तुमने अब समझ लिया कि मेरा एडवांटेज ये है कि कोई भी किसी भी स्कूल स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी कि कैसे वो अपने स्ट्रगल्स. अब जब तुम स्कूल स्टूडेंट की बात करोगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, मार्क्स नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन हेल्प देम हील दैट ब्रेकअप थिंग, बिकॉज उस चीज में जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर रहे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, दे आर अट्रैक्टेड, दे गेट इनटू रिलेशनशिप, दे फील ब्रोकन एंड सब कुछ उनको मतलब खत्म सा ही लगने लगता है उस टाइम. यू कैन हेल्प देम बाय दिस थिंग, यू विल हैव अ मैसिव ऑडियंस. दिख रहा है लाइक कि यार
और चीजें मैं कर सकती हूँ, अभी थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली है, लाइक कि एग्जैक्टली, स्कूल वाले स्टूडेंट्स को अपन कर यू सकते हैं। हैव दिस बेनिफिट कि तुम उससे बात करोगे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, एंड होता क्या है कि इवन द गर्ल्स एंड बॉयज दे डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दीज थिंग कि रिलेशन मैं प्रॉब्लम में हूँ या मेरे को ये ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे किसको? दोस्तों को बोल नहीं सकते, एज यू सेड कि वो मजे ही लेते हैं। बॉयज का तो हो गया, लड़कियों को चलो बोल भी दिया, बट अगेन फ्रेंड्स डोंट हेल्प यू, फ्रेंड्स योर फ्रेंड्स आर नॉट योर थेरेपिस्ट। वो बस एक मीम चल गया कि माय फ्रेंड इज फ्री थेरेपिस्ट, दे आर नॉट थेरेपिस्ट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, दे विल जस्ट ट्राई टू काम यू। फॉर एग्जांपल उस मोमेंट तुम थोड़े खुश भी होगी क्योंकि दोस्त साथ हैं, व्हेन यू विल गो टू योर होम यू विल गेट वरीड, right? And when you will एग्जैक्टली, put the law of attraction, visualization, manifestation as a solution to them, so they will listen you, they will form a connection with you, and then if someone is comfortable, so they when they will talk to you, you will create an impact, right? परफेक्ट, So you are targeting those peoples, you are targeting yourself who was in the school, right? And there are lots of people who are like you, the students like you. So when you will start, you will understand, okay, these are the students, these are the yeah, the I cannot teach them their subject, but yeah, I can help them like how you can go from this to this by exactly, using law of attraction, yeah, or visualization process. Yeah, exactly. so Now when you will experience, so when you will talk to them, you will get more clarity, okay, this person needs this, okay, I am not being simple, I have to use simple words, मुझे और सिंपली इनको समझाना पड़ेगा, मुझे इनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अब इनकी लैंग्वेज समझने का क्या मतलब है? यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज बिकॉज तुम अभी पास हुई कि स्कूल स्टूडेंट्स कैसे किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने पेन्स को या अपने पेन्स को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर उसको जोक समझते हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक कि हम ये चीज़ कहते हैं कि गलत चीज़ खुद को मत कहो जब हम मैनिफेस्टेशन भी बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हुआ एंड उसे लगा कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर वो मीम्स देखे जिसके अंदर वो बता रहे होते कि मैं तो 24 साल का हो गया, हैव नो गर्लफ्रेंड, और ये 18 साल के गर्लफ्रेंड बना रहे। सो यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अब होता क्या है कि ये इंटरटेनिंग चीज़ तो है, अब ये इंटरटेनिंग उसके लिए जो मेंटली डेवलप्ड है, ठीक है, कि हाँ हाँ हंस ली हंस लिया। अब फॉर एग्जाम्पल सच में कोई 23 साल का लड़का है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो 18 साल के लड़के को देख रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसको तो हो गया ना भाई इनसिक्योरिटी। वो तो शायद स्टोरी भी डाल दे उसकी और हंसे भी, लेकिन सबकॉन्शियसली तो ही इज फीलिंग इनसिक्योर। सो ये सेम थिंग हैपन टू द स्कूल स्टूडेंट्स, दे सी द मीम्स एंड दीज ऑल द डार्क ह्यूमर के नाम पे जो भी चल रहा था, यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। नाउ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डार्क ह्यूमर, you are talking about how you can use law of attraction and remove these things from your schedule to make yourself better, to become what you are, right? Many people don't, as I said कि उस स्टूडेंट ने जो कहा कि मेरे को मार्वल में मैं काम नहीं कर सकता बिकॉज ये तो बहुत बड़ी चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल वो भी ऐसी चीज होगी जो उनके अंदर ब्लॉक हो रखी है, जो कि तुम मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अचीव कर पाएंगे। एंड when they will उनको बस एक बार एक्सपीरियंस करना है। फॉर एग्जाम्पल यू मे थिंक यार, फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि मैं सब्जेक्ट टीच नहीं कर सकती, मे बी यू सेड इट बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट देन यू, बट व्हाट्स द थिंग? फॉर एग्जाम्पल आई एम I am a student and I am feeling frustrated about my marks or about my mental breakdown or breakups, and I just saw scrolling and your video came up and I started listening because you said कि मैं school, you said something कि school students के बारे में बात हो रही है, how can they overcome about various problems, and I started listening you. What happened that कि मेरे को तो पता ही नहीं था सब्जेक्ट के बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपर्ट है भी या नहीं है, बट आई एम हियरिंग वंशिका, शी इज हेल्पिंग मी, आई नीड टू लिसन हर। टू मी यू आर द एक्सपर्ट, यू आर द थिंग, तो मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही मेरी हेल्प कर रहे हो। सो डोंट, बिकॉज ये बहुत होता है कि यार बहुत लोग हैं मुझसे अच्छा कंटेंट बना रहे हैं यार इस टॉपिक के ऊपर, but you are unique because you have your own experiences, you are unique because people have clicked your video, if they are seeing you, you are already unique because they will understand your experiences, right? So now you have the clarity, you have the audience, right? Remember, be simple, go simple, okay? And when you will start, always one thing keep in mind, always keep thinking, okay, always observe that what is happening when you made a video, someone commented, or go and talk to the people or students कि उनकी मैं हेल्प कैसे कर सकती हूँ, help them understand their language, you will have lots of ideas, write it down and implement it, but always remember कि तुम different topics पे कहीं ना कहीं बात कर सकती हो। For example मैंने किस किस टॉपिक पे बोला, breakups, you are not a relationship coach, but you will talk about breakups, breakdowns, mental breakdowns and the dark humors and its negative impact, but इन चीजों को integrate किसके साथ करोगे? Law of attraction. law So of your main
Yeah, your main thing is law of attraction. But you are integrating the five topics. Five topics in five kinds of mindset you are attracting. Five kinds of students you are attracting, जो कि main problems तुम address करने की कोशिश कर रही होगी. You got the idea? Okay. So you have any question before we move ahead? No, got Okay. a specific clarity. That's great. Now I will talk about scripting. Okay. For scripting, I have some questions for you. Okay. Now, scripting is something. I will start with myself. When I was starting out, again, जब मुझे पता चला that shorts, तो मैं उस चीज़ को समझ रहा था कि shorts में ही growth है, so shorts में तो script चाहिए, तो मैं क्या करूँ? I started scripting and मेरे को समझना है कि एक पन्ने पे script लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि एक पन्ने पे कैसे समझाऊँ, same problem. So what I discovered that I am not a scripting वाला इंसान. मेरे को scripting नहीं आती. मतलब मेरे को scripting आती है. I can write script for the people, but to me, I am not a scripting person. And how I found it? I found it by asking some questions that I will ask to you. So first of all, scripting का मुझे जो लगता है कि वो ना personality पे depend करता है. So first question कि मेरे साथ क्या था that I like to speak. मतलब एक टॉपिक पे मुझसे बुलवा लो, मैं बोलता जाऊंगा, I won't stop. वन बाय वन एक दो टॉपिक समझाते जाऊंगा. एंड यू हैव सीन इट राइट नाउ. बिफोर जो मैं बोल रहा था वही मेरा स्टाइल है कि आई एम नॉट स्पीकिंग विद द स्क्रिप्ट राइट नाउ, but I'm providing some value. I'm talking with structurized format. I'm trying to be simpler as much as I can. So that's my style. Now the question is, what do you want? Can you speak? Do you like to rant मतलब कि बहुत सारा बोलते रहना, or you like to be specific, on point, or do you like free flow or organized? Question number one, do you like to free flow or organized? Free flow जो ये हो रहा है right now to me. You are asking me question, I'm going free flow. I'm just letting my words out, and you are asking, letting my words out. This is free flow. Or you like to be organized. Organized is basically you wrote a 4 pages script word to word, and now you just तुमने वो याद कर ली या तुमने वो सामने रख ली, and you are just seeing and speaking. So what you think, like? For the free flow, as someone is in front of me, like we both are talking, so that is good for me, like for the free flow. And while I was recording in front of camera, so there I need a script, like for one word to one word. Okay. एज यू Because सेड कि जब कोई सामने है तो मैं फ्री फ्लो कर सकती हूँ. हाँ, वो तुम इसलिए कर सकती हो कि क्योंकि मैं क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगा, या फिर इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि कोई सामने है, कोई इंसान है? किस वजह से? पहला कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे इसलिए तुम फ्री फ्लो कर पा रही हो. दूसरा कि बस कोई इंसान सामने है तो मैं फ्री फ्लो कर पाऊंगी क्योंकि कोई सामने है सुनने वाला. व्हाट यू थिंक? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप मुझसे, तो मैं बता पाऊंगी कि लाइक एग्जैक्टली. एग्जैक्टली क्या है. सो ओके, ठीक है, एक हो गया क्वेश्चंस वाला. ओके. एंड देन okay, so are you okay in just reading word to word script before going on a video, like while recording the video? Okay. Yeah. So here is what I have for you. कि word to word I will say कि one thing also यहाँ पे भी एक चीज हम सीख सकते हैं कि now you are starting, there is no right or wrong solution in content creation. Okay, the right answer is the testing. What does it mean? एग्जैक्टली, क्योंकि Right? मैंने जो वीडियोस वगैरह पहले बनाए हैं और फिर जो भी मैंने उनको रिकॉर्ड करा है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक कि मैं इतना कभी किसी से खुद से तो इतना बोली नहीं हूँ कैमरे के आगे, तो मैं हिचकिचा जाती थी बोलने में, नहीं बोल पा रही थी. तो फिर मैंने क्या किया, प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा, उसको कम से कम 20 से 30 बार मैंने उससे रिहर्सल करा विदाउट कैमरा. और Okay. कैमरे में भी मैं कम से कम बहुत बार मैंने उसको रोका है, वापस स्टार्ट किया है, फिर वापस स्टॉप किया है, ऐसा करके सारी चीजें हुई है. उसके बाद जाके लास्ट में एक वीडियो अच्छा बन के आता है. So यहाँ पे मुझे जो चीज समझ आ रही है that is कि जो स्क्रिप्टिंग है that can be your major problem when you are creating your videos. या Right? वही Because now प्रॉब्लम है. मतलब मैंने टॉपिक भी निकाल के रख लिया है, उसके बाद भी
स्क्रिप्ट करने में ही मुझे प्रॉब्लम आई, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया था कि लाइक मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रहा कि मैं ओके एग्जैक्टली कहाँ पर फंस रही हूँ, इसलिए मैंने उसको बोला अभी इधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक है करना है कर लेंगे, वो वैसा वाला सीन हो गया था। ओके ग्रेट। सो हियर इज द थिंग, नंबर वन थिंग कि व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू टेस्ट। अब तुम क्या टेस्ट करोगे, मैं 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन यू आर जस्ट क्रिएटिंग फॉर एग्जांपल अ वीडियो, किस वीडियो पे बात करें कि हाउ आई वेंट फ्रॉम गुड मार्क्स टू बैड मार्क्स टू गुड मार्क्स बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो पहले हम दिमाग में सोचते हैं कि वो वन पर्सन क्या है, हमारा वन व्यूअर। तो वन व्यूअर के दिमाग में पहले क्या आएगा, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्वेश्चन लिखना है, ये लिटरली क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ डज इट हेल्प in calming yourself, you wish how does it help you uh, in studying। okay, तो 3 4 5 6 क्वेश्चंस हो गए। कीप दैट क्वेश्चंस एंड डोंट ऑन योर कैमरा, कीप दोस क्वेश्चंस एंड विजुअलाइज। ये टेस्ट करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी गुड और बेटर और क्या होगा, टेस्ट करना है दैट हाउ इट गोस। अब तुम्हें क्या सोचना है कि मुझे बस इस 4-5 क्वेश्चंस को बताना है। ये हो गया तुम्हारा मेन कंटेंट। अभी हम हुक और सीटीए की बात करेंगे, कॉल टू एक्शन। तो 5-6 क्वेश्चंस जो हो गए, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन की फर्स्ट शुरुआत ही ऐसे कर दो। पहले तो हुक हम बाद में क्रिएट करेंगे, हम पहले अभी इसके बारे में बात करें। तो हाउ यू स्टार्टेड, सो व्हाट डज इट मीन टू, व्हाट डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन, एंड यू स्टार्टेड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, वो होता है। इवन यू अगर अटक रहे हो तो रुको मत। होता क्या है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं हम अटक गए, शिट दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, शिट दोबारा, डोंट डू दैट, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। रुकोगे, जस्ट काम योरसेल्फ, वो एडिटिंग में देख लेना या कट कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो कट भी मत करो, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग, पीपल उनको इतना वो होगा नहीं, दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। सो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग की, जैसे अभी तुम मेरी और तुम्हारी बात हुई, यू टॉक्ड अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हेन यू स्टार्टेड टेलिंग योर स्टोरी यू डिडंट स्टॉप, तुम रुकी नहीं, टोल्ड योर स्टोरी कि ऐसे ऐसे मैंने किया था, ये सब किया था, यू डिड वेल। सो हम कब रुकने लगते हैं, जब हम बहुत टेक्निकल होने लगते हैं कि यार ये गलत वर्ड बोल दिया क्या यार, ये सही से नहीं यार बोला। वही मेरे साथ हो रहा था, मतलब मैंने ये रिकॉर्ड वगैरह किया, उसके बाद मुझे मैं बार बार इतना सा भी अटक जा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ना अरे यार मैं अटक गई, अभी वापस जैसे मैं तुम, शुरू कर हाँ एग्जैक्ट, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बीच में मैं भी बहुत पर साय राइट, मैं अटका। सो अब लोग, अब तुम्हें क्या करना है, वो अटकने दो। मेरे कुछ वीडियोस अगर तुम देखोगे उसके अंदर मैं बहुत अटक रहा हूँ, मैं बहुत कर रहा हूँ, बट आई अपलोडेड देम, यस अपलोड इट, यू विल गेट बेटर। ओके, मैंने रील्स में भी क्या होता है कि जो पॉजेज होते हैं ना वो लोग कट कर देते हैं, जैसे जंप कट से नहीं कहते हैं कि पॉज हुआ कट कर दिया, मैंने वो भी नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्ट देयर, क्योंकि अभी मेरे को काफी लोग देख नहीं रहे, लेकिन जिस दिन देखने लगेंगे आई विल हैव समथिंग, लुक आई स्टार्टेड विद दिस थिंग, मैं अटक रहा हूँ, मेरे को नहीं आ रहा तब भी मैं देखो कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास था कि यही तो है ना, लोग पीपल डोंट वांट परफेक्शन, उनको एक्सपर्ट नहीं चाहिए, जो परफेक्ट होता है हम उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल it happens in relationship, even I have experienced it, that I was with a girl and she said that you are too good, right? So is it a problem कि तुम बहुत अच्छे हो? For them it is कि मेरे को इतना भी अच्छा नहीं चाहिए। तुम तो मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर से कि तुमको लगे कोई बंदा परफेक्ट है, तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं इसके साथ हूँ तो ये तो छोड़ भी सकता है यार, बिकॉज ही इज और शी इज टू परफेक्ट हर चीज में, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ फ्लॉज। सो क्या होगा कि वो लड़का या लड़की अच्छी भी है, यू विल लीव देम। सो सिमिलरली पीपल डोंट वांट परफेक्शन। आई हैव दिस थिंग कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, तो व्हाई वुड पीपल लिसन मी, आई डोंट नो गुड एडिटिंग, सो व्हाई वुड पीपल लिसन मी। दे डोंट वांट परफेक्शन, क्योंकि हर कोई अच्छा कर ही रहा है, दे वांट समवन टू कनेक्ट विद, ये मेरे जैसा है, यू नो। इन एक्टिंग ऑल्सो यू सी अ लॉट ऑफ मूवीज, लोग ज्यादातर कनेक्ट उनके साथ करते हैं जो उन्हीं से निकले। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर्स जैसे भुवन बाम, नाउ ही इज बीइंग इन मूवीज, व्हाई वी कनेक्ट टू हिम, बिकॉज ही इज वन ऑफ अस, हमसे शुरू हुआ, हमारी तरह था, हमारी मिडिल क्लास फैमिली की तरह था, एंड नाउ ही इज देयर, सो वी कनेक्ट टू हिम, नॉट विद द बिगेस्ट स्टार्स जो कि परफेक्ट है, चाहे पैसे में हो दिखने में हो, वी कनेक्ट टू भुवन मोर देन एनी अदर स्टार। तो वो चीज ध्यान में रखने की, ये तो सभी है ना जिनको भी स्टार्ट करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट्स टू क्रिएट वीडियोस, दे आर नॉट स्टार्टिंग। सो व्हेन दे विल सी कि ये लड़की अटक भी रही है, इसका कैमरा भी ज्यादा अच्छा नहीं है, इतने लोग भी नहीं, बट यार कंटेंट तो आ रहा है, so you will be inspiration. People don't want perfect or experts, people want someone like them starting out and fighting. हमको वही तो पसंद है कि कोई हमारा जैसा यार आगे बढ़ रहा है, तो हम उसकी खुशी में भी खुशी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक दोस्त है बहुत अच्छा करने लग गया, तो हम खुशी होंगे यार हमारा जैसा था, देख कितना आगे बढ़ गया यार,
वी विल फील हैप्पी फॉर हिम, और वो इंस्पिरेशन भी बनेगा कि यार हमें भी करना है भाई, हमें पीछे नहीं रहना। सो जब सही। ये माइंडसेट आने लगता है, सो हमको कभी इनसिक्योर फील ही नहीं होता, क्योंकि यार हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनमें से निकल एग्जैक्टली। रहे हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर। तो ये बहुत होता है कि लोगों को लगता है कि सामने वाला बंदा प्रिविलेज है, तो तुम्हें लगता है कि बट हर कोई प्रिविलेज तो नहीं है। For सही। example, again, connecting this thing to the Bollywood thing, there are lots of memes goes on about nepotism कि ये एक्टर है एक्ट्रेस है इसलिए अच्छा कर पाएगी because they are star kids. Again, they are kids, star kids. वो अपने कोई स्टार है जिनके बच्चे इस वजह से नाम से जाने जा रहे हैं, अपने नाम से नहीं जाने जा रहे, राइट? सो जब तुम किसी क्रिएटर को देखते हो, किसी को देखते हो जो तुमसे बहुत अच्छा कर रहा है, यू थिंक ये इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि ये प्रिविलेज है, सो दैट शुड नॉट बी योर एक्सक्यूज। इट शुड बी कि यार मेरे पास जो है, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ विदाउट प्रिविलेजेस, विदाउट एनीथिंग, बिकॉज दैट्स वेयर क्रिएटिविटी फ्लोज इन। जब तुम बाउंडेड होते हो लेकिन उस बाउंडेशन को पार कर देते हो विद एनीथिंग यू हैव, इवन जस्ट वन फोन। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है तो हमारे पास कोचिंग के पैसे नहीं होते, बट पीपल क्लियर एग्जाम्स विदाउट कोचिंग टू, एंड दे बिकम रियल एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन। सो दैट्स द माइंडसेट यू शुड हैव, एंड यही माइंडसेट तुमको आगे भी पास ऑन करना है। जब तुम अपने स्टूडेंट से बात करोगे, दे थिंक दे आर नॉट परफेक्ट, दे थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहेगा, ये अभी एकदम से तो वर्क नहीं करता ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी रियल टू योरसेल्फ। तो उनको तुम ये माइंडसेट पास ऑन कर सकती हो डिफरेंट वर्ड से कि तुम्हें यू हैव टू बी विद इट, राइट? सो अगेन कमिंग बैक टू द थिंग, डू दिस थिंग कि क्वेश्चंस लिख करके बोलना स्टार्ट करो। तीसरा कि वर्ड टू वर्ड में यू विल, आई थिंक कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम दे रही होगी जो कि वर्थ इट नहीं है, क्योंकि जब तुम एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं तो अगर हमने उस वर्ड से डिफरेंट कुछ बोल दिया तो हमारे से सहन नहीं होएगा, हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं सो आता है। सो यू बिकम लाइक स्लेव टू योर ओन वर्ड्स, टू योर ओन स्क्रिप्ट। तो वो चीज़ होने मत दो। द थिंग यू शुड फोकस ऑन दैट हाउ यू कैन फॉर्म ग्रेट हुक्स, उस पर फोकस करना है। अब जो ओके। हुक्स है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, जो कि हम आने वाली क्लासेस में, जो वीकली क्लासेस हो रही होंगी, तब हम उनसे कंसीडर करेंगे ऑफ कोर्स। फॉर नाउ आई विल टेल यू वन मेथड, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, और वन मेथड दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ which you can start using from day one. For example, when you are writing, be you specific, you are talking about them, and second thing, योर हुक शुड बी यूजफुल, कि वो कैसे उस हुक के अंदर पता चलना चाहिए कि कैसे तुम्हारे वन व्यूअर को हेल्प करेगा। जब तुम लिख रही हो, हुक स्क्रिप्ट करना है, हुक तो याद कर लेना, ठीक है, हुक याद कर लेना, बाकी फिर क्या है कि 4-5 क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके आंसर देना, फिर अपना स्किटिया जो तुमने बनाया होगा वो पास ऑन कर देना, वो भी लिख लेना। सो पहला हुक क्या होगा, यूजफुल होना चाहिए कि मेरे वन व्यूअर को यूजफुल लगे, ठीक है। दूसरा, अर्जेंट होना चाहिए। अर्जेंट मतलब कि अब यहाँ पे अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है हमको, कुछ अर्जेंट। अब अर्जेंसी में ना क्रिंज नहीं करना हमको। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज ना झूठ नहीं बोलनी जो कि है नहीं, क्योंकि अर्जेंसी हमको बहुत ऑथेंटिकली क्रिएट करनी है कि अर्जेंटली यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट हेल्प यू फ्रॉम आफ्टर, इट विल हेल्प यू फ्रॉम द मोमेंट यू फिनिश दिस वीडियो, और इट इज समथिंग यू डोंट नो, यू हैव दिस आई। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेल देम कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कि हमारे पास होता है, बट वी डोंट नो कि इसको इम्ब्रेस कैसे करें। एकदम यू हैव, वी ऑल हैव दिस थिंग टू विजुअलाइज, राइट? तो इसका मतलब हमारे पास सुपर पावर्स हैं। सो हुक में तुम ऐसा कुछ कह सकती हो दैट यू हैव अ पावर, you have already a power inside yourself but you don't know how to use it and I'm going to tell you, right? So वो हो गया अर्जेंसी, हो गया कि हमको देखना है कि एक सुपर पावर मेरे पास है जो कि मुझे पता ही नहीं कि कैसे यूज करनी है, सो आई मस्ट हियर। सो यूजफुल, अर्जेंसी एंड यूनिक। नाउ हाउ टू बी यूनिक, यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल, यू जो चीज तुम जिस ऑडियंस के पीछे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए, यू आर ऑलरेडी बीइंग यूनिक क्योंकि उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा होता। बट अगेन उसमें भी यूनिक कैसे बनना है, यूनिक तुम क्या बनते हो, अपनी पर्सनालिटी से बनते हो। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ भी ना, बी ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या होता है, या ऑथेंटिक मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ क्या है अच्छा एग्जाम्पल, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मुझको वीडियो बनानी है तो मेरा रूम बहुत गंदा रहता है, ठीक है, लेकिन मेरे को वीडियो बनानी, तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी बस पीछे पीछे का साफ कर दिया, यहाँ का साफ कर दिया। दैट इज नॉट ऑथेंटिसिटी। लोग तो यही कहेंगे कि साफ कर लो पीछे पीछे का, वीडियो बना लो, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी दो है, या तो मैं अपना कमरा साफ रखूं, ठीक है, दूसरा है या मैं जो मेरा गंदा कमरा ही है मैं उसी के साथ वीडियो बनाऊं, क्योंकि गंदा कमरा भी लोग शायद इम्प्रेस कर ले कि हाँ यार मेरा भी कमरा ऐसे रहता है, ओरिजिनल तो है, झूठ तो नहीं बोल रहा, और अच्छा रहे तो यार अच्छा इंसान है, मतलब अच्छी क्लीन रूम है।
दैट इज एग्जैक्टली। ऑथेंटिसिटी कि तुम्हें देखना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि जब कुछ लोगों को सुन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस विद चरण का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने क्या करा था, जब अपने करेक्टर्स निकाल दिए, डिफरेंट करेक्टर्स हैं और वो कॉमिक्स सा चल रहा है और एक वार्तालाप कॉन्वर्सेशन हो रही है, उनका देख के बहुत लोगों ने कॉपी किया, दे लॉस्ट देयर ऑथेंटिसिटी देयर। ओके, तुम्हें ये देखना है कि मेरा स्टाइल क्या बोलूं। कुछ लोगों का स्टाइल होता है एकदम चिल्ला के बोलने का, हे गाइस लेट्स, बहुत जोर की बोलने का, एकदम एनर्जेटिक। अब ऐसा नहीं कि एनर्जेटिक मैं नहीं कर सकता, बट मेरे को पसंद नहीं करना, राइट। मेरे को उछलना कूदना बोलता है ऐसे, तो इतना एनर्जेटिक नहीं पसंद। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं करूंगा। आई वोंट कॉपी, आई विल बी ऑथेंटिक कि मेरा क्या स्टाइल है। इवन फॉर एग्जाम्पल यू सी, इफ यू नो लेक्स फ्रेडीमैन, जो कि एक पॉडकास्ट होस्ट है, तो वो बहुत धीरे बोलते हैं, मतलब एकदम यूं शांति से बैठते हैं, काइंड ऑफ बोरिंग गाय। लोगों को लगेगा कितना बोरिंग इंसान है और बहुत आराम से बोल रहा है, ओके दिस इज द थिंग यू आर थिंकिंग, एंड यू विल सी कि यार कितना बोरिंग होता है, लेकिन पीपल हियर हिम बिकॉज ही इज ऑथेंटिक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मेरा क्या स्टाइल है जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे। और हाउ यू फाइंड द स्टाइल, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज, क्योंकि हर कोई लोग कह देता है कि अपना स्टाइल फॉर्म करो, बट कैसे करें। सिंपली व्हेन यू गो ऑन यूट्यूब, फॉर एग्जांपल यू सेड कि तुम इस यूट्यूबर को सुन रही होती हो, तुम उसे इसलिए सुन रहे हो बिकॉज यू लाइक देम, यू लाइक देयर स्टाइल, मीनिंग कि उनका स्टाइल जब तुम खुद में लाओगी तो तुमको पसंद आएगा। अभी खुद में लाओगी तो मतलब हो गया क्या, कॉपी करना है, एग्जैक्टली कॉपी देयर स्टाइल। Now people have so much problem in copying other people's style, and I always tell to them that किसी को भी कॉपी कर, फॉर एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल इंसान है, बहुत अच्छा बोलता है, हम उसको कॉपी कर रहे हैं, क्या फर्स्ट डे हम कॉपी कर लेंगे? इट विल टेक यू लॉट ऑफ टाइम टू कॉपी दैट लेवल। उस लेवल को कॉपी जब तुम करने, सपोज यू स्टार्टेड एंड तुम्हारे दिमाग में था भाई इस इंसान को कॉपी करना है, यू जस्ट वर्कड आउट इन, अंडरस्टूड हिम, ऑब्जर्व्ड हिम, उसके वर्ड समझो, उसके बोलने के स्टाइल समझो, और कॉपी करते करते तुम यहाँ आ गए हो उसके लेवल पे। व्हाट वुड हैपन कि कॉपी करते करते नाउ यू हैव दिस एबिलिटी टू क्रिएट योर ओन स्टाइल। सो पाथ तो यही है। Now it's, कैन यू हियर मी? yeah. ओके, सो एज अ सेट कि वहां पे तुम्हें कॉपी कर रहे होगे, तो तुम जब उसको कॉपी कर लोगे, एट दैट मोमेंट यू हैव दिस एबिलिटी टू क्रिएट योर ओन स्टाइल। और क्या पता बीच में तुमको लगने लगे कि यार मैं अपना कुछ बना सकता हूँ, राइट। सो इस चीज को ध्यान रखना, व्हेन यू आर लाइकिंग समवन, किसी के हुक पसंद आ रहे हैं तो उस हुक को कॉपी करके कहीं रख लो, ठीक है, फिर खुद उसको अपनी तरीके से यूज करो, जस्ट कॉपी अदर पीपल। और इस चीज से बिल्कुल कतराना मत कि मैं कॉपी कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, नॉट डूइंग एनीथिंग, एवरीवन कॉपीज, यू नो। देयर इज अ डिजाइनर जिनका मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने क्या करा था, कैराउजल्स चल रहे थे, कैराउजल्स होते ना तो एक कैराउजल था, तो उन्होंने क्या करा, ही वाज अ डिजाइनर, एंड जो दूसरा कैराउजल है वो ऐसे एनिमेट करेगा, यू नो, यू पास करके ऐसे यू करेगा, यू मे हैव, तुमने देखा होगा। तो वो जो था उस डिजाइनर ने क्रिएट किया था, इट वाज हिज स्टाइल। और हुआ क्या, उसके कुछ 10 दिन बाद गैरी वी अपलोडेड अ carousels with same style, and everyone was tagging that specific designer that Gary Vee copied your style, yeah, Gary Vee, and he was so happy कि Gary Vee ने वो चीज कॉपी करी। So you are seeing कि जो ग्रेटेस्ट भी हैं हमारी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, गैरी वी, he also copies, right? So जो बिगनर्स होते हैं, they copy, they think yeah, I want to be unique. You become unique by copying, because you can't copy 100%. When you will be able to copy 80 to 90%, you will have this ability to create your own style, and you will succeed, right? So let them right now have a speaking style, and I love people who are articulate. Articulate basically means जो बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, सही words का use कर रहे होते हैं, उनको articulate कहते हैं। So there is a speaker, psychologist, doctor whose name is Jordan Peterson. So he speaks so very well. Jordan Peterson, I mean, he's so articulate. I'm so fascinated by him. I always copy his style. I always try to speak like him. I always try to, find the words how he chooses. And he also says, "Ki, copy me if you can and learn from me." So ये चीज समझ आ गई, हुक भी तुम इसी सीखोगी कॉपी करके दूसरों को। नाउ यू डोंट हैव टू बी सो मच वरीड अबाउट हुक, यू जस्ट कीप गेटिंग बेटर।
at it. Right now, I don't think कि मैं कोई expert हो गया, but I know I'm getting better. I copy others' hooks. I try to create my own hooks. And in classes, when we will have weekly classes, we will have weekly classes when we hit 10 members in our group. So उसके अंदर मैं बता रहा हूँ how you can use ChatGPT to create hooks, not just generic hooks, like how to write the perfect prompt, and then after prompt how you can add your own touch to your hooks. But right, but for now you can copy other people's, just see कि ये hook कैसे कर रहे हैं, क्या videos में बोल रहे हैं, समझो उसका ना लिखो. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोस है, या तो लिंक कॉपी करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट ले लो, कॉपी कर लो और देखो कि इसके क्या बोल रहे हैं, शुरुआत में क्वेश्चन बोल रहे हैं, कितना गैप दे रहे हैं. ऑब्जर्व देम बिकॉज यू लर्न मोर. Remember this one thing: when you are watching any video, when you are watching or consuming any kind of course, you don't learn by consuming. Okay, what is learning actually? Exposure to information. Exposure to information. For example, you are watching video, वहाँ क्या हो रहा है? Exposure to information. So to me, exposure to information is not learning. Executing the information is learning. तुमने एक वीडियो देखी, अब जो इन्फॉर्मेशन तुमने वहां पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हुई, तुमने कंज्यूम करी, अब उसको तुम एग्जीक्यूट करोगी, then you will learn, right? Exactly. So ये ध्यान में रखना. ये I did this mistake कि मैंने बहुत सारा कंटेंट ना कंज्यूम कर लिया, like binge watch नहीं होता, देखी जा रहे हैं. I did that. I had just for hours and hours watching videos, reading books, but and I'm not doing anything. I'm not executing anything. So don't do that thing. Always remember, तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है. जब कोई तुम वीडियो देखते हो तो इट्स जस्ट प्रीशियस टाइम. यू हैव टू नो कि इस वीडियो के बाद मेरे को ये चीज करनी है. अगर वो वीडियो में वैसी चीज नहीं वैल्यूएबल है नहीं, जस्ट रिमूव दैट वीडियो. अगर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देख लो, देन इट्स अ डिफरेंट केस. ओके, सो राइट नाउ, बाय नाउ, यू हैव एनी क्वेश्चन? Is there any questions left to ask me for you? No, for now I think questions मेरी तरफ से बहुत कंप्लीट हो चुके हैं. बट अनदर थिंग कि अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विजुअलाइजेशन है, मैनिफेस्टेशन है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्निंग अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा कि मैं अपनी जो स्थिति में बहुत सारी वीडियोस देखी थी. आई स्टिल वांट यू टू कंज्यूम वैल्यूएबल कंटेंट, बट रिमेंबर दिस वन रूल कि जो तुम्हारा कंज्यूम का परसेंटेज हमेशा 30% होना चाहिए और क्रिएट का 70%. यू वॉच द वीडियो, लेकिन ये ना है कि तुमने कंज्यूम बहुत ज्यादा किया लेकिन क्रिएट कम किया, बिकॉज यू लर्न मोर व्हेन यू क्रिएट. तो कंज्यूम जो भी तुम्हारा टाइम है उसका जो 30% है वो हमेशा 70% creating. Okay. And remember one thing, okay? This is so important. I still sometimes fails to follow this. Create 70%, consume 30%. But तुम भी शायद फेल हो, it's okay. But stick to this rule. कि मेरे को consume कम करना है, create ज्यादा करना है. Now another thing, you know, the magic happens, or people will connect with you when you combine two different things, right? So how would you do it? You are combining two different things. Like for example, when you are learning about law of attraction, visualization, manifestation and different things from it, तो तुम्हें क्या करना है, उसको सीख करके ये देखना है कि कैसे मैं इसको अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर सकती हूँ. दैट इज वन थिंग, ठीक है? और अगर तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ तो फिर तुम्हें वो एक्सपीरियंस करना है. तुमने कोई नई चीज सीखी ताकि तुम उसके बारे में बोल सको, एक्सपीरियंस करना है. तीसरी चीज कि कॉम्बिनेशन क्या, कि फॉर एग्जाम्पल तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सीखा, जो मैंने 5 चीजें बताई थी, तुम मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में बात करी, हाउ दे कैन, तो ये क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया. तो तुम यहाँ पर अपनी कैटेगरी क्रिएट करोगे, क्योंकि लोग तुमको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए नहीं सुनेंगे, इन सब चीजों के लिए सुनेंगे, क्योंकि तुमने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया जो और कोई नहीं कर रहा. मे बी पीपल विल रिकॉग्नाइज यू लेटर, बट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू नो कि मैं आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक, बिकॉज आई एम कंबाइनिंग 2 डिफरेंट थिंग्स इनटू वन थिंग. That is my content, that is my thing. Okay, this will help you to stand out in the voice and in the market. Okay, so I think and remember कि always do, और language समझने के लिए हमको क्या करना है, उनकी language बोलने के लिए there is something we call market research. Market research में क्या होता है, you have to join as many groups as you can in Facebook around wellness, about manifestation, law of attraction. बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, उनको ज्वाइन कर लो. रेडिट पर सबरेडिट्स होंगे, उनको ज्वाइन कर लो. जितनी ईमेल लिस्ट हो सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उनको ज्वाइन कर लो. उससे होगा क्या, you will have lots of ideas always, because you go on email, you saw an email and you click something, I will create this video. You go on Reddit, you see someone saying or telling their problems कि मेरे साथ ये हो रहा है, and you got the idea, अब मैं इस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊंगी.
right? When you go on Instagram, follow those creators, you will have always lots of ideas. लेकिन बस ये याद रखना, जैसे दिमाग में आइडिया आ रहा होता है, just write it down उसी समय. अपना फोन रखो या कॉपी या पेन, कुछ भी, उसी समय अपने आइडियाज को लिख लो, राइट? और बस खत्म करो. तो हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और फेसबुक में रेडिट, हर जगह ईमेल पर यू आर एक्सपोज टू दोज इन्फॉर्मेशन एंड यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट आइडिया. जब उन चीजों को तुम रोज आसपास रहोगी तो तुम्हारा दिमाग वैसे वर्क करने लगेगा कि हाँ ये आइडिया है. अब उस आइडिया को कंबाइन कैसे करूँ अपने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ? नाउ यू हैव द थिंग. तुमने उनकी लैंग्वेज भी समझ ली, एक आइडिया भी ऐसे निकाल के आगे जो उन्हीं के कंटेंट से आए, एंड यू विल हैव दैट आइडिया. वी ऑल जो भी क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, हमारा माइंड जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बहुत एकदम एकदम अच्छे आइडियाज आ रहे होते हैं. द थिंग है, हम उसको नोट नहीं करते, और नोट कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते. तो तुम्हें नोट भी करना है, तुम्हें एग्जीक्यूट भी करना है. नाउ नाउ एनी क्वेश्चन? आई एम गोइंग टू इम्पोर्टेंट पार्ट राइट नाउ. No, any question. Okay, now coming to the most important thing, or say the most important two skills which you must learn, जो कि सबको ही सीखनी चाहिए, ठीक है? वो क्या है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, जिसमें हर कोई फेल होता ही है. Everyone fails these two things. Everyone comes to me and they ask me that what skill should I learn? क्या चीज सीखूं? I tell them कि consistency and discipline सीखो पहले. So this is द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू ग्रो. क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को बहुत हेट कर रहे होते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम को हेट कर रहे होते हैं, बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि जो चीज है वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. लोगों को क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी तो यार सुन रखा है ना हमने, यार हमने तो पहले सुन रखा है, हर कोई यही कह रहा है, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे हो जाए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ. तो द स्ट्रैटेजी इज सिंपल कि गो विद consistency and discipline. तो तुमको ये फॉर्म करना है ना, I guarantee you that you will fail in 1 week, 2 week. That's the thing. People fail. The thing is you have to keep standing up, keep creating content, and जब classes हो रही होंगी, be present in the classes. We will have accountability call. We will understand कि किसने कितना progress किया होगा, कौन कहाँ अटक रहा है. So we will have that community. I'm building that community. We will have that aura कि हर कोई यहाँ पे action लेता रहे हर weekly. But to you yourself, remember the consistency and discipline. Yeah, You have for to that keep it. accountability, I brought my daily planner for Exactly. 2024, ताकि उसमें मैं अपनी जर्नलिंग करूँ उस पे, लाइक मैं क्या कर रही हूँ पूरे दिन में, और फिर कैसे पूरा दिन जा रहा है, मैं उसके मेरे मंथ्स को कैसे प्लान कर रही हूँ, 3 मंथ्स कैसे, 6 मंथ्स, 9 मंथ, 12 मंथ, ऐसा सब कुछ प्लानिंग करके 2024 के लिए मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है. इस चीज के लिए मतलब बहुत अच्छी. And right now, for example, last year I also planned a lot of things, and now looking back at those things, I didn't achieve even a single thing. But yeah, there are lots of experiences, the things I learned. But जो plans हैं, I'm happy that you have made some plans. Now you will just remember this one thing when you are starting out and after you pass 12th standard. People say that you have lots of time and you should consider कि तुम्हारे पास बहुत सारा time है. Even right now, मेरे 2 साल हो गए, and I think I did a lot of mistakes. तो कुछ टाइम के लिए मुझे लगा यार मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी. आई डोंट हैव टाइम, एंड टाइम मतलब स्कूल कॉलेज नहीं गया, और अब ये कर रहा हूँ, बहुत मिस्टेक कर दी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो द थिंग इज यू हैव टाइम, बट इसको अपना कंफर्टिंग फैक्टर मत बना लेना कि बहुत टाइम है. एग्जैक्टली. मैं वही, और इसको अपना एक गोल भी मत बना लेना कि मुझे छोटी एज में बहुत बड़ा कुछ करना है, कि मुझे 21 साल तक इतने करोड़ रुपए कमाने हैं. क्योंकि यहाँ तो क्या चल रहा होता है, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना कर लिया इस उम्र में, इतना कर लिया इस उम्र में. एज डजंट मैटर. मेरे को नहीं लगता कि वो चीज अगर तुम कह रहे हो एज अ क्रिएटर, अगर तुम कह रहे हो किसी को कि मैंने इस उम्र में इतने करोड़ रुपए कमाए, तो उसका सिर्फ एक इंटेंशन मैटर करता है. अगर तुम्हारा इंटेंशन है उस ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना कि मैंने 21 साल की उम्र में कमाए हैं, तुम भी कमा सकते हो, लिसन मी, एंड ओनली से दिस व्हेन यू कैन मेक देम उस लायक बना सकते हो, तभी कहो. एंड प्लस उसके साथ मेरे को लगता है एक आइडिया और जोड़ना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 21 साल की उम्र में तूने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, अच्छी चीज है. या नाउ अब जो 22 साल या 23 साल का जो एक लड़का है या लड़की है, वो अभी अपनी जॉब से आ रही है, बहुत थकी आ रही है, मेट्रो में वो रील देख रही है. नाउ शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैं 23 साल की होगी, आई डिड माय सो मच हार्ड वर्क, आई डिडंट अर्न करोड़. सो यू आर क्रिएटिंग chaos, यू आर क्रिएटिंग नॉइज. आई डोंट वांट दैट, राइट? एंड देयर आर, फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल भी है मेरे पास. आई थिंक यू नो जाकिर खान, राइट?
So Zakir Khan never share his achievements on Instagram. Right now you go and observe him. कोई भी ऐसी achievement, बड़ी सी बड़ी achievement, he's not talking about on Instagram. And one day, and I have always this thinking, why this person is not talking? Because he's amazing at what he does. And बहुत सारे लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, तो why doesn't he talk about? And he told on Instagram, एक स्टोरी आई, उसमें उन्होंने ये बोला कि मैं इसलिए शेयर नहीं करता बिकॉज लोग अभी बहुत परेशान हैं वहां पे, जब भी मेरे को देख रहे हैं, वो खुद अपनी जिंदगी इतने संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने इतने अचीवमेंट्स उनको बताऊं। मेरा मन करता है मैं उनको हंसाऊं, उनको खुश रखूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं ना डालूं इंस्टाग्राम स्टोरी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने अचीवमेंट्स को मत दिखाओ, उनकी पर्सनल चॉइस है, दिखाओ। पीपल वुड बी हैप्पी विद योर अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा कि मैं एग्जाम्पल दिया ना कि मेरा दोस्त अच्छा करेगा, सो व्हाट वुड आई विल फील हैप्पी फॉर हिम। लेकिन अगर मेरे दूसरे ही दोस्त कर रहा, यार ये कर गया, मैं नहीं कर पाया, मतलब समझ रहे हो? तो वो चीज होती है कि कुछ लोग तुमको हेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जाकिर खान ऑलवेज सेज, जाकिर खान इज द ओनली क्रिएटर आई सी हु हैज नो हेट। तो मुझे लगता है कोई हेट ही नहीं मिल रही होती, बिकॉज ही डजंट शेयर दोस थिंग। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज तुम अच्छा कर रहे हो और वो अच्छा नहीं कर पा रहे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर तुम भी उनकी जगह तो यू विल फील सेम। सो इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा ये राइज होता है, क्या मैं अपनी अचीवमेंट शेयर ना करूं? बिल्कुल करो, बट इंटेंशन अच्छा होना चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। योर इंटेंशन मैटर मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगेन जाकिर खान की बात हो रही तो कॉमेडी की बात करते हैं। जब हम कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, तब उसके अंदर जो कॉमेडियन होता है वो सामने वाले इंसान की इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन वो उस पर भी हंस रहा होता है सामने वाला इंसान। क्यों? बिकॉज द इंटेंशन इज नॉट टू इंसल्ट हिम, द इंटेंशन इज टू मेक पीपल लाफ, इंटेंशन इज टू मेक एंटरटेन। तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है। तो जो भी तुम बोलते हो, for right now, my intention with you is to help you, to get you started, to give you clarity. That's my intention. तो अगर मैं कुछ ऐसे ब्रूचुअली ऑनेस्ट भी बोलूंगा जो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मेरी गलती है, ये गलती है, तो तुम बुरा नहीं मानोगी, बिकॉज यू नो कि दिस इज फॉर माई इंप्रूवमेंट। सो इंटेंशन मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंटेंशन है तुमको नीचे दिखाना, और मैं वो सेम बात बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, so you will feel so bad, so frustrated when you're saying out. Always remember that intention matters. For example, people starting out, they have this vision कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, but they don't have this thing कि if your intention is to earn money, you will not grow. This is my thing कि मेरा ये कि जब तुम start कर रहे हो, if your only intention is to earn money, you are not going anywhere. You are not going to grow on any platform. You have this intention to learn, to serve, to understand, and then people will happily pay you, or the clients will happily pay you. Okay? Exactly. So इन चीजों का ध्यान रखना। And now at last, I will talk about the platform thing कि तुम्हें किस platform पर start करना चाहिए। Now, I had this question to myself, and remember one thing before choosing the platform. The mistake I did, as I said, I have done a lot of mistakes, that I wanted to create content on every platform when I was starting out. या सब प्लेटफॉर्म पे नहीं, तो जैसे अभी ट्विटर पे कुछ पोस्ट कर दिया, फिर अगली बार चलो यूट्यूब पर कर दिया, फिर इंस्टाग्राम पे कर दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता था, तो इंस्टाग्राम पे कर दिया। I felt like, और वो कहीं नहीं ले गया मुझे, ना लिंक्डइन पे ग्रो हुआ, ना ट्विटर पे ग्रो हुआ, कहीं पे भी ग्रो नहीं हुआ। So what you need to do is you need to choose just one platform. उस प्लेटफॉर्म को अपना सब कुछ मान लो, राइट? अब ये किस प्लेटफॉर्म को अपना सब कुछ मानना चाहिए? 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या है कि कौन सा कंटेंट तुम सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कौन सा कर रहे होते हो? Instagram. So now there is a problem with Instagram too, but right now I'm telling you, जो भी तुम कंटेंट, जो भी जहां पर भी तुम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि उसी प्लेटफॉर्म के साथ क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। सो मैं भी तुम्हारी तरह, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो ऐसा ही है कि तुम एक बार बैठो तो तुम देखते ही जाते हो। इट हैपेंड टू मी एज वेल। सो आई थॉट कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कंज्यूम कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज वहां पे मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से समझता हूँ लोगों को, उस प्लेटफॉर्म। बट इट डिडंट वर्क फॉर मी, मेरे को इंस्टाग्राम समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अब रील्स भी इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है, तो वो मेरी लॉन्ग वीडियो जो 1.5-2 घंटे की होती है, उसमें से रील्स में अपलोड कर रहा होता हूँ, राइट? सो माय मेन फोकस इज जस्ट यूट्यूब राइट नाउ, एंड आई repurpose तो वहां का कंटेंट आके यहाँ डाल देना। बट फॉर स्टार्टिंग आउट, आई डोंट सजेस्ट यू टू repurpose एज वेल, बिकॉज repurpose एक अलग से एक बर्डन लगने लगता है कि यार अब वहां पे भी उस प्लेटफॉर्म पे भी डालना है, और फिर किसी प्लेटफॉर्म पे मतलब अट्रैक्शन नहीं मिल रहा होता, तो लगता है क्या फायदा यहाँ पे डालने का। सो repurpose करना, लेकिन अभी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करना। टू मी, यू शुड choose YouTube when you are starting out for the short videos. YouTube पे कितनी जल्दी तुमको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा होगा। YouTube इसलिए कह रहा हूँ कि
you're practicing is on YouTube, your main content is on Instagram, राइट? क्योंकि तुम वहां के कंज्यूम करो, यू अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम, एंड वहां पे तुम्हें पसंद नहीं आएगा रील्स क्रिएट करना, कोई लाइक भी करेगा, यू विल फील हैप्पी, ओके समवन इज देयर वाचिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइकिंग, कमेंटिंग. सो स्टार्ट विद कमेंटिंग. अब जो स्टार्ट विद इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब है वहां पर तुमको प्रैक्टिस करनी है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक टॉपिक आया एंड नाउ क्रिएट अ वीडियो ऑन ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ऑन दैट थिंग. उसको बना लिया तुमने, इंस्टाग्राम पर डाल दिया. अब हो सके तो उसके अंदर से छोटी छोटी रील्स निकाल के डाल दो, ठीक है? नहीं तो 1 मिनट की रील किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा दो, या फिर 1 मिनट की रील में ये समझा दो कि तुमने उस स्पेसिफिक वीडियो में क्या बताया, और उनको बोलो कि वीडियोस जा करके देखिए, राइट? सो रिमेंबर, योर यूट्यूब इज योर प्रैक्टिस ग्राउंड, जहाँ पे तुम बहुत, क्योंकि यूट्यूब पे कोई देख रहा हो तो तुम अटक नहीं डाल, तुमको प्रॉब्लम हो रही है डालना, डालो. तो बिना थंबनेल के वीडियो डालनी है, तो नहीं यार थंबनेल बनाना, डाल दो, ठीक है? बस डाल दो. और अपना इंस्टाग्राम पर तुम्हारा वो है ना कि इंस्टाग्राम चीज है, तो इंस्टाग्राम पर तुमको क्या करना है, उसकी रील्स उठा के डाल दो, या फिर 1 मिनट की रील्स अपनी डालते रहो. और स्क्रिप्टिंग का तुम्हें पता, अब 1 मिनट की रील है तो सिंपली एक क्वेश्चन, एक रील. एक क्वेश्चन को तुम्हें 1 मिनट में समझाना है, बस तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि 1 मिनट में मैं कैसे समझाऊं, समझा दो. और सपोज तुम 1 मिनट में समझाने लगी और सनास है, और तुमने 1.5 मिनट में समझाई, और 1.5 मिनट के बाद ये मत कर देना रोक के मैं 1 मिनट की दोबारा बनाऊंगी, नो. अब 1.5 मिनट में से जो तुम एडिट में कट कुट करके 1 मिनट की करके डाल, से नाश रोक के जैसे तैसे करके 1 मिनट की डाल दो, राइट? विद टाइम क्या होगा, तुम अटकना बहुत कम कर दोगी और तुम्हारी 1 मिनट की रील निकलती जाएगी. द मेन थिंग राइट नाउ फॉर यू इज टू स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट. दैट्स द थिंग. ये सब चीजें बहुत, मैं ऐसा सोच ही रही थी, लेकिन मैं जब भी इंस्टाग्राम पे रील डालना स्टार्ट करूंगी, जब मैं पोस्टिंग स्टार्ट करूंगी, उसके पहले मेरे पास 30 डेज का कंटेंट एटलीस्ट हो. ये मैंने सोच के रखा है, लेकिन जब भी मैं स्टार्ट करूंगी एटलीस्ट 20 to 30 डेज का कंटेंट मेरे पास पहले से ही हो, ताकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. ओके, सो दैट्स इफ यू वांट टू गो फॉर इट, सो तुम अपना 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकालो और जस्ट ऑब्सेस विद दिस थिंग कि मेरे को 30 रील निकालनी, 30 रील बनानी, बनाओ. 1 हफ्ता कमिटेड हो जाओगे, मेरे को 30 बनानी, 30 बनाओ, जैसी तैसी बनानी, बस 30 बना के डालनी है. द फर्स्ट फेज इज जस्ट अपलोडिंग. इवन आई एम इन दैट फेज टू, कि आई एम जस्ट इन अपलोडिंग फेज, कि मैं भी अपलोड करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि रीच आउट करूंगा. वही है, इनिशियल में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी होना ज्यादा जरूरी है, वरना अपन भी टूट जाते हैं कि लाइक ठीक है, आज नहीं बनाई तो नहीं बनाई, रहने दो, ऐसा वाला हो जाता है. लेकिन फिर 30 दिन तक कंटिन्यू डलेगी ना, तो फिर अंदर से भी लगेगा अरे यार, और फिर तुमको एक टाइम भी मिल जाएगा, 30 दिन का. सो 1.5 हफ्ता लेकर के प्लान करो इस चीज को, एंड जैसी तैसी जब रिमेंबर कुछ भी है बस डालना है. और अपनी प्रोफाइल में, आई सॉ योर प्रोफाइल, आई डोंट नो यू, तुम उसको रिक्रिएट करोगी, नई प्रोफाइल बनाओगी, अपना जो तुम करती हो उसको ऑप्टिमाइज कर लेना, दैट व्हाट यू आर हियर फॉर. एंड रिमेंबर, यू आर इन द लर्निंग फेज राइट नाउ, सो यू कैन डू एज मच एज मिस्टेक्स. सो जस्ट रिमेंबर, एक रूल जब भी लगे कि यार ये खराब लग रही है वीडियो, खराब लग रही, रिमेंबर कि गोल तो अपलोड करना है. अभी मैंने बोला अपलोड करके, मैं वो गोल है, खराब तो अच्छी जब ही होगी जब मैं बार बार अपलोड करूंगी, क्योंकि जब दिखेगा ना, अब वो अपलोड वाली सपोज करो तुमने डिलीट कर दी, तो कभी हमको दिखेगा ही नहीं कि यार ये चीज थी वहां, या तो हम फिर नई वीडियो बना लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर कभी बनाएंगे ही नहीं. ओके, सो आई थिंक अभी जो हमारी कॉल हुई, ये जो पॉडकास्ट हुआ, इट्स लाइक द अंडरस्टैंडिंग द यू एंड द जो भी पॉडकास्ट पर आ रहा होता है, एंड देन लेटिंग देम बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो कि अभी बिल्डिंग बस स्टार्ट ही हो रही है. आई थिंक यू विल बी लाइक सेकंड और थर्ड मेंबर इन द कम्युनिटी. सो अभी जो चीज़ हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर ली, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम क्लासेस हो रहेंगे तो इन टॉपिक्स को हम बहुत खोल के समझ रहे होंगे, बहुत ही स्पेसिफिकली समझ रहे होंगे. सो इट इज जस्ट द स्टार्टिंग, डोंट वरी. हम बहुत जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे एक और कॉल पे, जहाँ पे और भी लोग होंगे, जहाँ पर हम बहुत स्पेसिफिकली एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो उसमें और भी मजा आने वाला है. बट रिमेंबर, यू हैव टू बी कमिटेड टू योरसेल्फ. If you are just starting out and you took the decision not going to the college, means your parents believe in you, you believe in you, and right now I also believe in you that you will do good, because now you have something which is different from the other people. So remember this one thing, okay? So any other question you have? No, but yeah, what you will suggest me like for the starting of my 2024, like मुझे क्या और अच्छे से करना चाहिए, या फिर
कौन से यूट्यूब चैनल्स है जिसके लिए मुझे जाना चाहिए, बुक्स के लिए मुझे जाना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को और ग्रो करती रहूं खुद के लिए। Okay, so there are two things I would suggest you. Number one, कि as you said कि मैं किन किन चीज़ों पर फोकस करूँ, so remember कि एक चीज़ ही पकड़ो, सिर्फ एक चीज़। तो अगर मैं कहूँ तो तुम्हें क्या पकड़नी चाहिए, जो भी हमारी बात हुई कि मेरे को यूट्यूब पे प्रैक्टिस करनी है, मेरे को इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, यही मेरी चीज़ है 2024 की, बस। और कुछ भी, ना फिटनेस के गोल्स रखो, ना स्पिरिचुअल गोल्स रखो, ना कुछ स्लीपिंग गोल्स रखो, कुछ भी गोल्स नहीं रखने। जस्ट दिस वन गोल कि मेरे को यूट्यूब पर प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर ये वीडियो डालनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने ना बहुत ही गोल्स लिख लिए हर जगह के, और मेरे से हुए कुछ भी नहीं अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ। सो ये थिंग जो भी मैं रिसेंटली रियलाइज कर रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज जो मैं पूरे साल करूंगा, सिर्फ एक चीज। तो तुम्हें वो नहीं देखना किन किन चीजों पे फोकस करना है, तुम्हें खुद से पूछना कि कौन सी एक चीज है जो मैं पूरे साल फोकस करूंगी, और वो चीज तुमको गिव अप कराने पे मजबूर करेगी। क्योंकि एक चीज को तुम सीखते हो, उस पर बेहतर होने की कोशिश करते हो, तुम क्या थकने लगते हो, बोर होने लगते हो, तुम्हें लगता है गिव अप कर दोगे, कुछ फलाने एक्सक्यूज दे करके गिव अप कर देते हो। सो उस समय भी अपना न्यू ईयर का क्या था कि अपने 2024 है, मेरी तो यही थिंग है कि मेरे पूरे साल अपलोडिंग चलेगी, कुछ भी हो मैं तो अपलोड करूंगी, दैट इज माय थिंग। तो एक ही चीज, और खुद को लगेगा भी यार और चीजें थोड़ी है, सिर्फ एक ही चीज तो है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस, इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे प्रैक्टिस, इंस्टाग्राम पे रील्स, दैट्स द थिंग। पूरा साल ये तो अगर तुम करोगे सिर्फ एक चीज को फोकस करके। एंड टू बुक्स, नाउ फॉर एग्जांपल यू नीड two skills basically. First skill is content creation, and content creation basically लोग कह देते हैं it's a skill, but basically what is the skill in the content creation? It is the maybe creating videos, basic editing, और मार्केटिंग, थोड़ी सी मार्केटिंग समझना कि कैसे अपलोड करना है, कब कैसे लोगों को हेल्प करनी है, सर्व करना है, कैसे हुक बनाना है, सीटी बनाना है, दिस ऑल कम्स अंडर द मार्केटिंग। सो ये स्किल होगी। दूसरी योर मेन स्किल, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। सो व्हाट आई सजेस्ट कि तुम्हें किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए या चीज, आई विल सजेस्ट यू कि इफ यू वांट टू लर्न अबाउट मार्केटिंग, understand marketing, you should start with 100 million offers, even though this आज ही book is आज ही about वो बुक आई है। आज ही वो बुक आई है। exactly, even though this book is about creating offers, but you will understand a lot of things about marketing and how these things work. For example, what I learned from that book: create an offer which people can't refuse, which people feels stupid to say no, ऐसे कुछ उसका हाँ। ऊपर लिखा भी हुआ है। So for example, this offer to become guest on my podcast, people can't say no to this thing. Why would this one? Okay, I'm helping, I'm doing everything for you, there is no point in saying no. So you have seen this. So this is something I learned कि एक ऑफर क्रिएट करना है। हालांकि वो मोनेटाइज, वहाँ पे बोलता है तुम मोनेटाइज भी कैसे कर सकते हो, किसी ऑफर कैसे करना है, बट राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग, सो आई से दैट आई विल अंडरस्टैंड क्रिएटिंग ऑफर। सो मैंने क्रिएट करा कि मैं हर चीज में हेल्प करूंगा, फ्री एक्सेस कम्युनिटीज को दूंगा, हैव डन दिस। फॉर एग्जांपल, अब नाउ what I learned from this, for example, मैं हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ community, now I help a lot of people, and community जो मेरा एक गोल अभी जो मैं बनना है कि हम 100 लोगों की कम्युनिटी बनाए, कम से कम 100 people, एंड हम वीकली क्लासेस करें फ्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चीज 6 महीने करता हूँ, एक टाइम पीरियड तक करता हूँ, या फिर लोगों की हेल्प करता हूँ। नाउ आई हैव हेल्प्ड देम, I have given them offer, and now I'm trying to sell something, I'm trying to monetize something, and I'm asking them, okay, इस membership का है तो we'll go and do this, and I'm doing this, come and join me, pay this amount of money. They will happily pay because I have served them for free. This is something I learned from that 100 million offer. You can read it and understand it. Okay, and remember this one thing, that always read books, and remember that after reading one chapter you must have an execution step कि मैं अब इसको अपनी लाइफ में, अपने कंटेंट में कैसे एग्जीक्यूट करूँ। I read a lot of books because I loved reading, but वो loved reading फिर तो तुम वही है कि I see a lot of movies because I love watching movies. You are not learning anything. Similarly, so reading becomes entertainment for you. So entertainment नहीं होना चाहिए. It should be a path of learning where you execute the thing. So जब ये चीज मुझे realize हुई, so जितनी books मैंने पढ़ी थी, I went back to those books. I created execution step कि अब मैं ये execute कर रहा हूँ, ये execute कर रहा हूँ. And whenever I read book, for example, recently I read Choose Your Enemy Wisely by Patrick Bet-David. It is not about marketing book, but it is about how you choose enemies, how your emotions like hate, anger helps you to become better at what you do. And I read it, and this I created execution steps. And after reading this book, what I am doing, I am
I will create a podcast episode about it, that what I learned and what I don't. So similarly, when you will read about the law of attraction manifestation book, whatever you learn, okay, this is something I call documentation of the content. फॉर एग्जाम्पल यू लर्न समथिंग न्यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड तुम्हें क्या करना है, वो एक्सपीरियंस करना है. तुमने एक चीज सीखी, तुमने उसे एक्सपीरियंस करा, तुमने कुछ उसके फीलिंग आई, कुछ रिजल्ट आई. अब चौथी चीज क्या, इन्हीं चीज को बताओ उसी वीडियो में. आई स्टार्टेड विद दिस बुक, आई लर्न दिस थिंग, और मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई थॉट हाउ कैन आई एक्सपीरियंस इट, एंड मैंने ये चीज करी, मुझे एक्सपीरियंस हुआ. फिर अपने एक्सपीरियंस की बात करो. यू हैव अ वीडियो, यू हैव अ कंटेंट. अब पीपल वो चीज भी समझ आएगी जो तुमने बुक में समझी, ठीक है, तुम्हारे एक्सपीरियंस स्टोरी होंगे जिससे तुमसे कनेक्ट करेंगे, एंड दे विल बिकम योर ऑडियंस. सो इवन तो यू डोंट नो एनीथिंग, और उसमें कुछ फेक भी नहीं करना. ये नहीं कहना ये चीज मैंने सीखी, तुमने बुक भी दिखा दो. आई लर्न दिस वन थिंग फ्रॉम दिस बुक एंड आई एक्सपीरियंस इट, दिस इज व्हाट आई लर्न, एंड ऑल दैट थिंग. सो दिस इज हाउ यू विल हैव ऑलवेज कंटेंट. कभी आइडियाज की मेरे को लगता है कमी होती नहीं है. लोग कहते हैं मेरे पास आइडियाज नहीं आएंगे, आइडियाज आर एवरीवेयर, जस्ट पिक इट एंड एग्जीक्यूट इट. ओके, सो with this thing, I think I will share the Facebook group link with you, but अभी वो इतना एक्टिव नहीं हो रहा होगा. अब जैसे 10 मेंबर हिट हो रहे होंगे, 8 मेंबर हिट हो रहे होंगे, we will activate that group and the classes will be there. So at last right now, for अभी जैसे आपके बाद भी और भी लोग आ रहे होंगे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आज तो नहीं है कोई, बट फॉर फ्यूचर पीपल जिनको मैं रीच आउट करता हूँ, जिनको जरूरत है मेरी हेल्प की, सो उनके लिए जो पहले जो गेस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर माय गेस्ट, सो वो लास्ट में एक काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल देते हैं, लाइक नाउ वी हैव दिस कॉल, हम 1 घंटे से ज्यादा से बात कर रहे हैं. सो टेस्टिमोनियल यानी कि बेसिकली आपको कैसा लगा, तुमको क्या चीज पसंद आई, नहीं आई, या फिर हाउ इट विल हेल्प यू, एंड व्हाट्स द माइंड शिफ्ट यू हैड, कि माइंड सेट शिफ्ट क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल बिफोर दिस कॉल you you were different, right? There are lots of things which were different in your mind. Now after this call, many things have changed in your mind. You have that clarity of anything. So right now I will keep quiet and give you 30 second to 40-50 second, as much as you want to speak, to give a kind of testimonial on for this podcast, for this offer, so that it attracts more people who can get benefit from this call. Okay, you are ready? Yeah. Okay, start. Okay, so a very big thank you to भैया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली, लाइक मुझे कैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, मुझे कैसे स्क्रिप्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं स्क्रिप्ट में ही फंस रही थी, मुझे बिल्कुल लिखते नहीं आ रही थी, लाइक कैसे करना है, क्या करना है, और बेसिकली कंटेंट कि मैं किन ऑडियंस को मैं अट्रैक्ट करूँ, मुझे किसको मतलब एम करना चाहिए, कौन मेरे आइडियल हो सकते हैं कि ये इनको मुझे ही सर्व करना है. मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी, लेकिन हाँ, ये कॉल के बाद मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आई है कि लाइक कैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना चाहिए और क्या प्लान्स हो सकते हैं मेरे 2024 के लिए. तो दैट वाज अमेजिंग. Thank you, Vanshika, for this. Even the thing is, you are happy about it, and तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है that you gain the clarity. But I promise you, when you will start your journey, and when you will have students or people in your private call or in your community, when you will help them, you will feel peace and you will feel satisfied that you have a mission. So right now, when I helped you, I am feeling so good that more than you, because I helped you, and you're going to do better. And when you will do better, because lots of people hear and understand, but they don't take action. I want you to take action, and when you will take action, I'll be so much proud of you, and the thing that you did the thing, and you started my journey with myself. Once when my friend told me that what's this podcast, why would someone listen to your podcast, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आ नहीं रहा. पॉडकास्ट का तो रूल होता है ना, हम उनको बुलाएं, और देखे तुम इनको क्यों बुला रहे हो. I shared this, the people, the students coming on my podcast, they will be future stars, and my podcast will be known because they started from here, from this podcast, they started their journey. So that is the USP. So I hope that you become one of those future stars, and one of the champions in your field, and you started it. So my wishes are with you, my support is with you, and my community which I am building. Soon we will be having free classes, we will be having lots of fun, and we will be learning a lot of things. For example, चाहे वो चैट जीपीटी हो या स्क्रिप्टिंग हो या मार्केटिंग की कुछ चीजें हो, we will be addressing every topic, and I'm happy to have you. Thank you, Vanshika. So right now you can cut the call. Okay. Okay. So I just leave.
फ्रॉम हियर? लीव कर देना, बस वो जो टैब होता है उसको क्लोज मत करना, ठीक है? वो दिखा देगा कि इट्स बीन अपलोडेड, तो फिर कर देना। Okay, so I am just leaving from here. ओके, बाय। Bye bye. Thank you.